Good evening, everyone. On behalf of the Central India Regional Council of the ICI, I extend a warm welcome to all of you, all the participants, and all the panelists today's available for the today's webinar on the topic of fundamental analysis. The topic is how to identify the profitable stock in the every market situation. The topic is very interesting. It is not my favorite topic, as well as it's a favorite topic of all of us right now. So we truly delighted to have such a enthusiastic gathering of the professionals who are eager to enhance their knowledge and skills, definitely on the area of equity market. So before we begin, let me take this opportunity to welcome and acknowledge the distinguished dignitaries with us today's webinar. Shri Ankur Kumar Gupta sir, chairman of CIRC of the ICI. सर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. थैंक यू सो मच सर. सीए आरसीएम निर्भीक गांधी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. स्वागत करता हूं सर, अभिनंदन करता हूं. सीए श्रेयांश रावत सर, चेयरमैन ऑफ अलीगढ़ ब्रांच ऑफ CIRC ICI, who will deliver his welcome speech also. And धवल सर, चेयरमैन, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सर. थैंक यू. And of course, our esteemed speaker on this panel, CA Arun Soni sir. Arun Soni sir, who will definitely guide us on the important topic today. Sir, मैं आपका welcome करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. Thank you, sir. To formally begin this topic of today's webinar, I would like to invite CA Shreyansh Rawat sir, chairman of the Aligarh branch of CIRC ICI, for his welcome address today. Sir, over to you, sir. Thank you, Deepak sir. A very good evening to all the respected professional colleagues and all the dignitaries attended this webinar. Most respected Chairman CIRC, CA Ankur Kumar Gupta sir, and Secretary CIRC, CA J.K. Tiwari sir, our distinguished speaker, CA Arun Soni ji, and moderator of the session, Sir CA Deepak Agrawal ji. On behalf of the Aligarh branch of CIRC of ICI, I extend my immense pleasure to welcome all of you in today's webinar on the topic of fundamental analysis, in which we all learn that how to identify profitable stocks in every market situation. This webinar has been organized under the aegis of CIRC of ICI, in which our learned speaker, CA Arul Soni ji, will enlightening us on the important topic, and our moderator of the session, CA Deepak Agrawal ji, will steering the flow of this program. I take this opportunity to express my sincere gratitude to the chairman of CIRC, CA Ankur Kumar Gupta sir, and the secretary of CIRC, J.K. Tiwari sir, along with their entire CIRC team, for their continued support in organizing such knowledgeable programs for the benefits of our members. In this webinar, we understand that how to identify profitable stocks and making the informed decisions for taking the highest benefits. But as we all know that the challenges in this market are also very high due to the volatility of the market. Even this, I am confident that today's session will equip us with the deeper insights and practical approaches to enhance our financial acumen. Once again, I welcome all of you and I encourage each one of you to actively participate to gain the maximum benefits from this session. Thank you team CIRC. इसी के साथ मैं अपने चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये एक नई प्रक्रिया शुरू की है कि अपनी छोटी छोटी स्मॉल माइक्रो ब्रांचेस को अपलिफ्ट कैसे किया जाए, एक नया तरीका ढूंढा है. इसके लिए मैं सरकार दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं. थैंक यू सर.
And Thank you again, so much. Thank you, over Rawat sir. over over to Deepak ji. Thank you, Deepak Thank ji. you, Rawat sir, for inspiring words. Before going forward to the our today's topic or introducing my interesting speaker, I can't forget to take few words from our CIRC chairman Ankur Gupta sir, and then definitely I will request to the Nirbhik sir also. So Ankur sir, I would like to invite you for your few words on this today's seminar. Over to you, sir. Over. Thank you, Deepak. Respected uh, श्रेयांश रावत जी, अलीगढ़ ब्रांच चेयरमैन। आज के हमारे स्पीकर हैं अरुल सोनी जी, मेरे को कलीग्स धवल कोठारी जी, सिकासा चेयरमैन, एंड निर्भीक भाई जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम हमारे साथ काम कर रहे हैं। निर्भीक जी ने न्यूज़लेटर पूरा संभाल रखा है आज तक का। अभी मैं जब देख रहा हूँ बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी है जो न्यूज़लेटर मंथली नहीं निकाल पा रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में हमने सीआरसी को भी देखा था। निर्भीक जी के कारण ही संभव हो रहा है कि हर महीने हम न्यूज़लेटर निकाल पा रहे हैं आप सब लोगों के सहयोग से। आप सब ब्रांचों के इस माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हमको आप अपने फोटोज ग्राफ जो भेज सकते हो, 2-3 ग्राफ फोटो भेजते हैं, हम शेयर करते हैं, हम हमारे कोशिश करते हैं कि हम उसको न्यूज़लेटर में कवर करें, तो हमारा न्यूज़लेटर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। आप सब लोग जितना अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में हमको शेयर करोगे, हम उसको पब्लिकली शेयर करेंगे। दूसरा, हमने एक न्यूज़लेटर में एक नया कंसेप्ट और जोड़ा है इस बार आपके सबके जो वेबिनार के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। हम चाहते हैं कि जो हमारा सीएपीएफ फंड है उसमें जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है मंथ टू मंथ, हर मंथ हम हेड ऑफिस से डाटा लेंगे, उन जो भी मेंबर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उनकी हम लिस्ट पब्लिश करेंगे। वहां पे कोशिश करेंगे कि अमाउंट डिस्क्लोज ना करें, न सिर्फ नाम ही डिस्क्लोज करें किस ब्रांच से किस मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, जिससे दूसरे मेंबर्स को भी थोड़ा इंक्रेज मिले, उनको बढ़ावा मिले। और ये टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो एक अलग ही टॉपिक है कि हर सिचुएशन में हम कैपिटल मार्केट से कैसे कैपिटल बना सकते हैं हमारी। तो इसके लिए आज अनुरुल जी ज़्यादा बताएंगे, सोनी सर जो हैं वो बताएंगे कि एफ एंडो में कैसे कर सकते हैं। शेयर मार्केट जो स्पॉट मार्केट है कि आपको डिलीवरी लेनी है या जो आपने कोई अगर ट्रांजेक्शन किया है ड्यूरिंग द डे उसको क्रैश करना, मतलब स्क्वायर ऑफ करना है। जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बेटर डिसीजन ले सकते हो, किस तरह से कैपिटल मार्केट से अपन पैसा बना सकते हो। वेबिनार का करने का पर्पज यही है कि हम जो गाँव में बैठे हैं लोग, ब्रांचेज में एक्टिविटीज होती रहती है, छोटी ब्रांचेज है जब वो हर टॉपिक नहीं कर सकता, वहाँ स्पीकर को हर तरह के स्पीकर को नहीं बुला सकते वो लोग, तो उनको कोशिश कर रहे हैं हम वेबिनार के रूप से जोड़ने की। सीपी स्टडी सर्किल है उनको वेबिनार के रूप में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को साथ में लेके हम कैसे हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें बेटर रूप में। इसका एक मुहिम चलाने की कोशिश की आप सब लोगों के माध्यम से। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि जितना मैसेज आप उसको मार्केट में सर्कुलेट करोगे, जितने मेंबर हमारे जुड़ पाए इस मुहिम में, आप सब लोगों का उसमें बहुत बहुत सहयोग हो जाएगा हमारा, और सीआईआरसी एक अच्छा काम कर पाएगी आप सबके सहयोग से। थैंक यू। ओवर टू दीपक जी। Thank you, sir. Thank you so much for inspiring words for us. मैं चाहूंगा I would like to invite Mr. Nirbhak Gandhi sir, Regional Council Chairman sir, RCM sir, please थैंक यू give दीपक us जी। few words. Thank you, sir. रेस्पेक्टेड हमारे अंकुर जी, अरुण जी, सहन जी, धवल जी, दीपक भाई, और मोस्ट इम्पोर्टेंट खान साहब, जो हमें चेहरे आपको चेहरे दिख रहे हैं, उन सबके पीछे जो हमारी इससे मजबूत कड़ी है वो हमारे खान साहब, जो हमें दिख नहीं रहे बट वो पीछे पूरा सामान उन्होंने रखा है। मैं अरुण जी और आपके भी ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, बट कुछ चीजें आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस की हम बात करें तो आई थिंक हम सीए से बेटर, मैं हर जगह बात बोलता हूँ कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेटर फंडामेंटल एनालिसिस को ही नहीं समझ सकता है। लेकिन दूसरी ओर बात करें तो हम जितने प्रैक्टिसिंग सीए हैं उनमें से कितने परसेंट सीए हम फंडामेंटल्स करते हैं और उसको अपने हमारे प्रोफेशन में हमने उसको शामिल किया है, यानी कि हमारे ऑफिस का एक पार्ट है। आई थिंक बहुत कम नंबर मिलता है। मैं जहाँ भी सेशन लेता हूँ मार्केट के, जहाँ भी जाता हूँ, तो नंबर बहुत कम मिलता है कि जिन्होंने मतलब खुद ट्रेडिंग करेंगे ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो क्या एनालिसिस करके कर रहे हैं, राइट, या करके उसको क्या हम प्रोफेशनली भी कर रहे हैं? नहीं। एक वेल्थ क्रिएशन एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा स्कोप आज की तारीख में है, जो शायद वो बहुत हम हमारे ऑफिस में हमारे क्लाइंट्स को नहीं दे पा रहे हैं। तो आज जो मेन हमारा मोटो है, बिकॉज आज जो जनरली मैं देखता हूँ जो भी रिसर्च एनालिसिस्ट हैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं ऐसा 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 करते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने बोला जिस रिसर्च एनालिसिस्ट की आप बात करते हो ना, हम सी ने उनको पैदा किए हैं,
मतलब हमसे बेटर नंबर्स को कौन समझ सकता है, हमसे बेटर फिगर्स को कौन समझ सकता है। हाँ, जिस रिसर्च की वो बात करते हैं, हमने वो जनरल एंट्री बनाने से लेकर, हमने उसको लेजर बनाने से लेकर, उसको फाइनल अकाउंट्स बनाने से लेकर, उसको साइन करके लिस्टेड कंपनी सेबी तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। क्योंकि हमसे बेटर कौन जानता है बैलेंस शीट में नंबर्स क्या बोल रहे हो, बैलेंस शीट क्या बोल रही है। एक सिंगल क्लिक में बता सकते हैं कंपनी कैसी है, बैलेंस शीट क्या बोल रही है, इसका पैनल क्या बोल रहे हैं। तो आई थिंक हमें इस फील्ड में करियर बनाना चाहिए। इवन खुद की आप प्रैक्टिस करते हो तो भी बेटर है, और क्लाइंट्स को भी हम सजेस्ट करते हैं, वेल्थ क्रिएशन पार्ट में भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा फील्ड हमारे सामने आता है। और ये टॉपिक इतना बड़ा है, मैं अरुल जी आज हैं, मैं विशेष तौर से अरुल जी अंकुश चर्चा करूंगा कि 2 घंटे का सेशन है, लेकिन 2 घंटे में 2 घंटे के 20 घंटे भी सेशन में कम पड़ते हैं। तो हम एक ऐसा प्लान करेंगे, सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अरुल जी का जो तरीका है, मतलब इसको बताने का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली कैसे हम किसी कंपनी को पकड़कर उसका पोस्टमार्टम करें, खोद खोद के जो निकाले भी किस प्रकार वास्तव में क्या चीज, ताकि हम उस मार्केट की फिक्र से दूर हो जाए कि यार मार्केट गिर रहा है, या कंडीशन ट्रम्प का टेरिफ आ गया, ट्रम्प का ट्वीट आ गया, वोट जो भी कंडीशन हो, वो हमारे स्टॉक्स को, हमारे पोर्टफोलियो को ज्यादा इम्पेक्ट ना कर पाए। ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पे हमें टेम्पर कर दे कि ऐसा क्या होगा, पैनिक कर दे, लेकिन अगर आपने कोई स्क्रिप्ट है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कहते हैं ना कि इंसान हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है, ऊपर ही जाएगा, उस शॉर्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो। सो ये रिक्वेस्ट है कि आज हम सेशन लेंगे 2 घंटे का, उसके बाद ऐसे प्लान करेंगे कि इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी रेगुलर इंटरव्यू पे, क्योंकि जिस प्रकार के हम देख रहा हूँ एक ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं काफी सारी ब्रांचेस से। सो कैसे हम इसमें बेनिफिट हो सकते हैं, हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी आप प्लानिंग हो, एक बार आप बताएं कि इस तरीके से हम वीकली या मंथली इसको प्लान करके, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम पूरा कंप्लीट 6 वीक कैसे प्रैक्टिकली हम एक एक चीज से, वेबसाइट पे जो आप दिखाए कि कैसे हम किस वेबसाइट पे जाना है, किस चीज को देखना है, और कैसे हमें उसको एनालिसिस करना है, वो चीज हम करें। तो आई थिंक काफी मजा आने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग सेशन है। आप सभी जुड़े रहें। और अंकुश जी ने सारा बताया किस प्रकार से सीआरसी हमारा वर्क कर रही है एक्टिवली, चाहे वो रिगार्डिंग टू वेबिनार्स हो, सेमिनार्स हो, सेशन हो, न्यूज लेटर्स हो, सीएबीएफ में कंट्रीब्यूशन हो। तो इन सब में हम सबका बहुत बड़ा रोल है, और आप सबसे सीआरसी हैं, आप सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि यार चौथी तीसरे बनेंगे तो उसमें सबसे बड़ा रोल को होने वाला है, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होने वाला है। उसमें हमारी भूमिका को समझें, और उस विकसित भारत के साथ साथ विकसित सीए, विकसित ऑफिस, हम सब भी उसके साथ विकसित हों, ये हम आप सबसे मेरी शुभकामना है, ये कल्पना है कि हम ऐसा करें। अगेन थैंक यू सो मच दीप भाई, अंकुर भाई, एंड एंटायर टीम ऑफ सीआरसी, स्पेशली अरुण सोनी जी। Thank you so much, sir, for your inspiring words. The words highly inspired to us. Before not taking so much time, but just I'm going to just tell you about this today's topic, the importance of the today's topic, and then I will definitely give you a few words for our speaker. So today's in the volatile market condition, identifying the fundamental, strong and profitable stocks are become both a challenging and necessity. So fundamental analysis help us evaluate the companies beyond short-term fluctuations and give us the confidence to make informed investment decision. So definitely about this area, we need some expertise. And for this preview, we just need a good expert to give us guidance about this topic. So our today's expert, I just introduce our today's experts. C. Arul Soni sir is a chartered accountant with 8 years of experience in the taxation and finance field. He is currently a partner of the Arul Soni and Company. With a wealth of knowledge in the capital market spanning 10 years, he possesses the extensive expertise in the technical analysis, covering a wide range of the market from cash to future and option. His experience include 3 years of the managing institutional funds at the proprietary trading desk, where he developed and implemented a strategy of the option market. Driven by a strong interest in the fundamental analysis, he has consistently applied the industry concepts to develop deep conviction about the various stock, further enhancing his financial expertise and decision-making capabilities. I would like to introduce, I've just welcome my today's speaker, C. Arul Soni sir. Sir, please, over to you, sir. सर दीपक भाई 2 मिनट में हमारे बीच धवल जी भी धवल मौजूद जी हैं। भी, धवल हाँ। जी आपको इस प्रकार जाना चाहिए। धवल कोठारी जी हमारे शिकायत चेयरमैन है सीआरसी में। इनसे दो Right, sir. वर्ड वर्ड ऑफ विजडम। थैंक यू निर्भीक जी।
थैंक यू दीपक जी। थैंक यू चेयरमैन सर। मतलब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अपन 15 मिनट्स इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें। तो जैसा 2 घंटे का है, और जैसा निर्भीक जी ने बोला भी था कि ये टॉपिक बहुत टाइम लेने वाला है, 2 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो रादर वेस्टिंग टाइम, अगर अपन उसको बाद में कंक्लूड कर लें, इट वुड बी बेटर। जितने पार्टिसिपेंट्स जो ज्वाइन कर चुके हैं वो पहले कर ले। बट हाँ, एक इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगा, जैसे अंकुर सर ने कहा था फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर एक प्रैक्टिसिंग सीए भी काम कर सकता है, काउंसिल ने अलाउ कर रखा है, वो इक्विटी के अंदर है, डेरिवेटिव कमोडिटी के अंदर नहीं है, तो उसमें ना करें। ओवर टू यू दीपक जी। Thank you, sir. Again, in the chain to inviting my today's webinar speaker, CRL Soni sir. Sir, please, over to you, sir. Thank you, CARC team and all the members. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फंडामेंटल एनालिसिस अपन सबसे पहले समझें कि भाई अपन फंडामेंटल एनालिसिस के बाद एफ बिल्कुल मतलब नहीं ही करना है। जितना नहीं करेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। रीजन बीइंग वो लिवरेज प्रोडक्ट है ना। और आपको उसके अंदर लेवरेज को समझते हुए, मतलब आप बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट समझो कि जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फर्म है वो भी जस्ट 2x लेवरेज पे काम करती है। और हमारे को 100x लेवरेज कभी कभी मिलता है, कभी हमको 10x लेवरेज मिलता है ना। और फिर भी हम मतलब उसमें एफ एंड ओ करना चाहते हैं, वो बहुत रिस्की है। तो एफ एंड ओ के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ फंडामेंटल और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं एक पीपीटी शेयर करता हूँ, ठीक है, वहां से। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस यही है कि हमको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है कंपनी की बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, उनको देखते हुए हमको देखना है कि कंपनीज को कैसे एनालाइज करना है कि कौन सी कंपनी हमारे फेवर में है और कौन सा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा एडवांस रख रहे हैं। हम बेसिक्स की बात नहीं करेंगे, मतलब मैं आपको बेसिक बैलेंस शीट या बेसिक इनकम स्टेटमेंट की बात नहीं समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा आज के हमको हर मार्केट के सिनेरियो में किस किस तरह की कंपनीज मिलती है, और उन कौन कौन सी कंपनीज पे हम लोगों को किस तरह से काम करना, मतलब किस तरह से देखना है ताकि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं 3 तरह की अप्रोचेस लेके आया हूँ। पहली अप्रोच रहेगी, हम एक तो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को देखें। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज का मतलब होता है वो कंपनीज जिनका मैनेजमेंट अच्छा है ऑलरेडी, है ना। और वो धीरे मतलब वो अच्छा ग्रो भी कर रही है। ग्रो कैसे कर रही है कि मैनेजमेंट एक कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। और जब वो कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है तो हमको उस मैनेजमेंट के साथ बैठना है। अब क्या होता है कि हम जब भी कोई कंपनी को लेते हैं, तो जैसे मानो 100 रुपए पे हमने किसी कंपनी को लिया, और हमने उसको 150 रुपए पे निकाल दिया, या 120 पे, 140 पे, हमने एक सर्टन क्राइटेरिया बोल लो, उसको टेक्निकल एनालिसिस बोल लो, या हमने कोई एक सर्टन क्राइटेरिया बना रखा है कि यार हमको 50% रिटर्न मिल गया, 30% मिल गया, 20% मिल गया। लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। हमको एक थॉट प्रोसेस बना के रखनी है फंडामेंटल एनालिसिस की। जो कोर थॉट प्रोसेस वो ये है कि आप ओनर हो इस बिजनेस के, आपने उसको स्टॉक को उस बेस पे खरीदा है कि आप मैनेजमेंट का एक पार्ट हो, और आप उस कंपनी की ग्रोथ के साथ खुद ग्रो करोगे। जब आप इस थॉट प्रोसेस से इन्वेस्ट करोगे तो आप हो सकता है उसमें 2x बनाओ, 3x बनाओ, 10x बनाओ, कितना भी बना सकते हो। और जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही पॉसिबल है, और वो कर भी आप इसके थ्रू ही सकते हो। तो हम एक तो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को लेने वाले हैं आज। एक हम कंपनी लेने वाले हैं टर्न अराउंड वाली, जो टर्न अराउंड हो रहे हैं बिजनेस, मतलब जो एक फेल बिजनेस थे और वो चेंज हुए, और कैसे चेंज हुए और हमको कहाँ देखना है, ये चेंजेस कैसे आए हैं, हमको वो पूरा देखना है। तो वो एक चीज, पॉइंट, एक पॉइंट वो हो गया। और तीसरी ऐसी कंपनीज है मार्केट में जो ऑर्डर बुक के बेस पे चलती है। मानो अभी जैसे आज आपने पढ़ा होगा, कल मोदी जी ने बोला कि हम सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाना चाहते हैं, हम इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कोई ना कोई कंपनी को तो फॉरवर्ड आना ही पड़ेगा, है ना। कोई ना कोई कंपनी को तो ऑर्डर मिलेंगे सही। तो ऐसी ऐसी कंपनीज भी होती है जिनको ये ऑर्डर्स मिलते हैं, और वो आइडेंटिफाई होते हैं मार्केट में, बस हम देखते नहीं है।
हमको कहाँ से देखना है। और एक बार चीजें देखने में आने के बाद, ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है ना, कई बार ऑर्डर आ गया पर एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब फंड रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा गवर्नमेंट से, उसकी क्वालिटी अप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब चीजें हमको देखनी है। तो तीन तरह की हम चीजें देखेंगे, एक ऑर्डर बुक ओरिएंटेड कंपनीज को देखेंगे, है ना, एक सेकेंडली अपन टर्न अराउंड को देखेंगे, एंड एक ग्रोथ वाली को देखेंगे। तो मैंने कुछ बनाया है, कुछ कंपनीज मैंने ली है, ठीक है। मैंने दो केस स्टडीज ली है, ठीक है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं बेसिक्स नहीं ले रहा हूँ। बेसिक्स ना लेने का कारण ये है कि बेसिक्स में ही 2 घंटे निकल जाएंगे, हम केस स्टडी पे बात नहीं करेंगे, कर पाएंगे। और हर मार्केट सिनेरियो का मतलब ये है कि कोई कंपनी अगर गिर रही है तो हमको कहाँ से पता लगेगा कि कहाँ से उसमें चेंजेस आए हैं, कहाँ से हमको इन्वेस्ट करना है। कोई कंपनी हमारे पास ऐसी आ रही है जिनमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हमको वो देखना है। वो कंपनियां मार्केट के अप एंड डाउन, मतलब वॉलेटिलिटी से भी दूर रहती है, और अगर उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वो रिटर्न भी देती है। जैसे कि मेरे पास अभी फिलहाल दो एग्जांपल हैं, और भी एग्जांपल से हम बात करेंगे। एक पेटीएम के बारे में बात करेंगे। पेटीएम लिस्ट हुई थी 2,000 रुपये पे ऑलमोस्ट, और वो 400 तक गई थी। बट चीज़ें कैसे 400 तक आई, चीज़ें मतलब प्राइस 400 क्यों आई, वो हम समझेंगे। और वापस आज 1,200 की जो प्राइस है, मतलब वहां से 3x वो हो गई है, तो वो क्यों हुई, उसके रीजंस को जब हम कैच करेंगे तो हमको बहुत बहुत चीजें समझ में आएगी कि टर्न अराउंड एक्चुअल में होता कैसे है। हमको दिखेगा वो नंबर्स में, और वो हमको पहले से पता लग जाएगा चीजें, और हमको उन्हीं चीजों, उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करना है। सेकंड, एक कंपनी हम डिस्कस करेंगे, एचबीएल इंजीनियरिंग। ये ऑर्डर बुक बेस्ड है, तो उसका डिस्कशन अपन बाद में करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम पेटीएम से। तो पेटीएम की स्टोरी स्टार्ट होती है जब पेटीएम, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पे एवरीवन, दीपक जी? यस सर दिख रहा है बिल्कुल ओके। परफेक्ट। आप देखेंगे पेटीएम यहाँ पे लिस्ट हुई थी 2,000 रुपये पे, ठीक है। ये टाइम था November 21 का। मार्केट में बहुत आईपीओज ऐसे आते हैं जब मार्केट एक बुल फेज में होता है, तो कंपनीज अपना ओवर वैल्यूएशन करके लिस्ट करा देती हैं, है ना। बट वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। आप समझो पेटीएम एक ऐसे सिनेरियो के अंदर है जहां पर कोई कॉम्पिटिटर आना चाहे तो कोई एंट्री बैरियर नहीं है इनके मार्केट में, ठीक है। अरुण जी अभी ओनली पीपीटी शो हो रही है, आई थिंक चार्ट शो नहीं हो रहा है। ओके ओके सर, एक सेकेंड। हाँ, ओनली पीपीटी शो हो रही है। या, अभी अभी हो रहा है चार्ट शेयर। अभी चार्ट हो रहा है, यस यस। हाँ, तो हम देखेंगे November 21 में पेटीएम आया था 2,000 रुपये पे। और ये आ, आप देखेंगे, मतलब फुल वैल्यूएशन पे इन लोगों ने इनको इसको लिस्ट किया था, है ना। उसके बाद कोई एंट्री बैरियर नहीं है, प्लस कॉम्पिटिटर इतने हैं, तो ऐसी कंपनीज में हम जनरली इन्वेस्ट नहीं करते। ये फॉल हुई, ऑलमोस्ट सबको एक सिग्नल था कि ठीक है, इतनी ओवर वैल्यूशन कंपनीज नहीं टिकती हैं। इसके साथ ही मोबिक्विक वगैरह ये सब सब लिस्ट हुई। बट देखा जाए तो प्रमोटर्स ने एक तरह से अपने फंड्स को एडजस्ट कर लिया, बट ठीक है। अब बट हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, चीज़ें कैसे बदलेगी, वो हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे 22 की हम बात करते हैं, November 22। और यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें इनका पेटीएम बैंक बंद हुआ था। ये सबसे पैनिक का सिचुएशन था इनके लिए 21 नवंबर के आसपास। मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। ये सब डेवलपमेंट्स हमको दिखेंगे। ये देखिए, ठीक है, 11 मार्च 2022 की बात है। आरबीआई का एक ऑर्डर है, दिख रहा है सबको? यस विजिबल अरुण जी। हाँ, तो ये 11 मार्च 2022 का ऑर्डर है, और ऐसे टाइम पे ना हमको इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। हमेशा ध्यान रखें। ये जैसे चीज़ें 11 मार्च 2022 को डेवलप हुई है, वैसे तो स्टार्टिंग से ही किसी को इस तरह की कंपनी में वैसे ही नहीं बैठना चाहिए, बट ठीक है, अगर अगर आप बैठे भी हो तो आपको समझना होगा कि ये March 22, ये यहाँ पे ये देखिए, इसने एक बॉटम क्रिएट किया है यहाँ पे। और उसके बाद इस कंपनी में ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। बट हम देखेंगे कि
ये इसने 350 का लो बनाया मई 24 में। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अभी यार अरुण जी 1300 रुपए चार्ट है। शो नहीं हो रहा है, ये हाँ ओनली जी सर, आरपी वेट पे वेट वेट, हाँ। हम्म, यस। तो अभी इसने लो बनाया 13 मई 2024 को, मतलब एक तरह से 2 साल में कोई रिटर्न नहीं। ठीक है। अब आप सोचें, जब बिजनेस बुरा होता है ना, तो हमको उस बिजनेस में कभी भी मतलब इन्वेस्ट नहीं करना है ना। ऐसी जब चीजें खराब होना चालू हो गई है, हमको पता लग गया है मार्च 22 से, तो यहाँ से इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं था। बट जून 24 में ऐसा क्या हुआ कि ये मतलब मेरी लिस्ट या रडार में आया। तो हम एक चीज देखते हैं। अच्छा, मैं सभी को लोगों को बता देता हूँ। हम लोग एक बार बेसिक का एक पॉइंट ले लेते हैं। वेट, हाँ। सभी लोग ये देखेंगे कि हम एक screener.com करके वेबसाइट है ना। तो इस वेबसाइट पे हमको सभी कंपनीज का फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है। यहाँ पे एक कॉन कॉल एनालिसिस का टूल होता है। ये मतलब देखा जाए तो बेसिक्स में हम लोग इसको कवर करते हैं कि भाई हमको जो भी चीज़ कंपनी के बारे में पता हो करनी होती है या हमको सुनना होता है, तो हमको हमेशा मैनेजमेंट का ही सुनना होता है। हम अपने मन से कुछ भी मत सुनो। आप कभी भी कोई भी कंपनी का एनालिसिस करो तो उसकी ये ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल होती है यहाँ पे, कॉन कॉल्स की। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट अपनी कंपनी के बारे में क्या राय रखता है, कि मैनेजमेंट कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है ना। और मैंने इस जुलाई 2024 की ट्रांसक्रिप्ट को जब देखा, ये पहली ऐसी ट्रांसक्रिप्ट थी जब से ये आई। अब मैं ओवरऑल डिस्कशन में ये ले सकता हूँ कि मैंने जुलाई 2024 में इन्होंने, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि बहुत बड़ी ट्रांसक्रिप्ट है। एंड यस, अब देखें। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है किसी मिस्टर राहुल जैन ने। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप फ्यूचर में कैसे, मतलब अपनी कंपनी को कैसे बेनिफिट करना चाहेंगे, या जो भी आपके साथ इतना, आपकी कंपनी में इतना कुछ बुरा हुआ है ऐसा ऐसा। तो विजय शंकर शर्मा जी हैं और मधुर देवरा जी हैं जो मैनेजमेंट से हैं। तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि हमको, आई थिंक आई विल जस्ट ऐड टू दैट, वी वांट टू फोकस वेरी शार्पली ऑन द प्लेस वेयर देयर आर इकोसिस्टम्स बेनिफिट्स टू अस। आप समझ रहे हैं, मतलब इन्होंने अपने जो अदर वर्टिकल्स थे जहां पे इनसे काम नहीं हो रहा था, जो लॉस मेकिंग वर्टिकल्स थे, उनको कम करते हुए इन्होंने यही पूरी ट्रांसक्रिप्ट में आप जब भी देखेंगे तो कॉन्फिडेंटली मैनेजमेंट यही बोल रहा था कि हमको अ, वही एरिया में फोकस करना है जिस एरिया में हमको बेनिफिट होगा। क्योंकि पेटीएम ने बहुत सारे वर्टिकल्स ओपन कर लिए थे और बहुत सारे वर्टिकल उनको लॉस दे रहे थे, क्योंकि ये पूरी जो भी इनका होता है सिनेरियो वो एडवर्टीजमेंट बेस्ड होता है। तो ये एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, फिर ये कस्टमर बनाते हैं। तो जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा उतना इनका मतलब काम अच्छा चलेगा। फिर धीरे ये क्रॉस सेलिंग करते हैं वैसा। तो क्रॉस सेलिंग के लिए इनको चाहिए कस्टमर्स। अब ये ऐसे ऐसे फील्ड में इन्होंने इतना कॉस्ट लगा चुके थे कि इनका वहां से कोई रिकवरी नहीं आ रही थी। बट मार्च 24 के बाद से इन्होंने ये जब चीजें चेंज करनी चालू करी और अपने वर्टिकल्स पे एकदम फोकस करना चालू किया जहाँ पे प्रॉफिट्स बन रहे हैं, तो फिर ये नंबर्स में भी दिखने लगे। मैं आपको नंबर भी शेयर करता हूँ इनके। एक बार हम स्क्रीनर पे वापस जाएंगे। ये जून 2024 की बात है, जब इनके मैक्सिमम ओपीएम -53% तक चल गया था। उसके बाद इनकी कॉन कॉल हुई और इन्होंने बोला कि अब हम शार्पली फोकस करेंगे हमारे
प्रॉफिटेबली वर्टिकल्स पे, और उसमें बहुत बड़ा अच्छा उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है कि कैसे उनको करना है, क्या करना है। मतलब सभी लोगों को कॉन कॉल तो रीड करनी चाहिए। कॉन कॉल रीड करेंगे तो फिर हमको पता लगेगा कि उन्होंने क्या क्या काफ़ी चीज़ें बोली है सही। इसके बाद आप देखेंगे तो क्या होता है ना, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, हमको ये भी देखना होता है उनका एग्जीक्यूशन कैसा है। तो आप नेक्स्ट सितंबर क्वार्टर में देख लीजिए, 53% का जो ओपीएम का लॉस था वो नेक्स्ट क्वार्टर में 24% हो गया। देन दिसंबर क्वार्टर में ये 12% तक आ गया लॉस। ठीक है, इवन इफ ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, हमने इसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, हमने इसमें इन्वेस्ट किया चीज़ों को चेंज होते हुए देखते हुए, और आप देखें वहां से ये 3 टाइम्स ऑलमोस्ट हो गया है। और अभी प्रेजेंटली जून 2025 में इन्होंने 4% का एक प्रॉफिट शो किया है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको कोई लॉस मेकिंग कंपनी दिखती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है एज ऑफ नाउ अभी की। तो इसके पहले एक फोर्स मोटर्स थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टर्न अराउंड में आप देखेंगे कि पेटीएम ने रिसेंट टर्न अराउंड किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस को कम करते हुए, और ये नंबर्स में दिख रहा है ना। और आप इसके साथ इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़िए प्रॉपरली, यहाँ पे नीचे या कौन कौन एनालिसिस के, आपको दिखेगा कि इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं। अच्छा, किसी को कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। अरुण मैं जी, क्वेरीज एक्चुअली क्या चैट बॉक्स में आएगी। ओके। सो अभी एक क्वेरी आई हुई है अभिषेक चौधरी जी की। कैन यू प्लीज लेट अस नाउ द रीजन टू हेड चेक May 24 रिपोर्ट ऑफ पेटीएम स्टॉक हैज मोर देन 2000 स्टॉक लिस्टेड। राइट, आप चैट बॉक्स खोलेंगे ओके 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 या फिर कोई रेज हैंड भी कर सकता है किसी क्वेरी हो, पर उसमें काफी टाइम, आई थिंक टाइम पर ओके लिमिटेड है। ओके ओके। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है। तो तो नो इट्स फाइन। मैं कि पेटीएम को ही क्यों देखा है ना, ओके, यस, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, एक बार पेटीएम को कंक्लूड कर लेते हैं, इसके बाद हम पेटीएम के बात करते हैं कि हमने इसको ही क्यों देखा। 2000 स्टॉक्स है, इवन 5000 स्टॉक्स है, बट ठीक है। एक बार और एक चीज़ और देखते हैं। अब देखिए, ये मैंने पूरा एक्सेल बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे पेटीएम ने आईटी सर्विस के लिए 21 जनवरी 2024 को एक वो साइन किया है। इसके बाद इन्होंने सैमसंग के साथ साइन किया ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट सर्विस का 16 जून को। ठीक है, इनकम प्रोटेक्शन प्लान 7 जुलाई को इन्होंने ये किया है। फ्लिक्सी बस इन्होंने 21 जुलाई को ज्वाइन किया है। ठीक है, जोमेटो को इन्होंने अपना एक बिजनेस बेच दिया है ना, अक्वायर्स टिकटिंग बिजनेस फ्रॉम पेटीएम एट 2048। तो ये वर्टिकल इनके लिए काम नहीं कर रहा होगा, तो इन्होंने ये बेच भी दिया। इसके बाद देखो, इन्होंने सेल स्टेक एट पे पे जापान फॉर 2364 करोड़। 15 दिसंबर को ये इनका डेवलपमेंट हुआ है। पेटीएम अक्वायर्स 25% स्टेक इन ब्राजील बेस्ड फाइनेंस स्टार्टअप। तो आप समझे, मतलब ये अलोंग विद इसकी जो कॉन कॉल है उसको जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये चीजें क्लियर होगी कि जो डेवलपमेंट्स, मतलब ये सब आपको स्क्रीनर पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास ही है, ये भी मैंने खुद ने नोट किया है। या आप जाएंगे स्क्रीनर पे, मैं एक सेकेंड वापस से शेयर करता हूँ मेरा स्क्रीनर। यस। हम्म। तो यहाँ पे कॉन कॉल आता है, देन इधर एनुअल रिपोर्ट है, देन इधर अनाउंसमेंट्स है। अनाउंसमेंट्स में आप रिसेंट और इम्पोर्टेंट ऐसा करके है। तो इम्पोर्टेंट के अंदर ये लोग जो भी यहाँ पे करते हैं, जैसे देखिए 22 जुलाई को अप्रूव्ड 800 करोड़ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम नोएडा आईटीईएस प्रोडक्ट की डायरेक्टर अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन डिस्क्लोज। तो ये यहाँ पे सारा आता रहता है, मतलब टाइम टू टाइम जैसे जैसे ये लोग करते हैं। जैसे पेटीएम सब्सिडी इनकॉर्पोरेट्स यूएई एंटिटी पेटीएम अरब एट एईडी 8 मिलियन कैपिटल फॉर पेमेंट एक्सपेंशन। तो हमको यहाँ से रीड करना है कि एक्चुअल में जो कंपनी हम देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मतलब एक्चुअली टर्न अराउंड स्टोरी क्या होती है ना, कि जो एक फेल बिजनेस था उसमें अब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने लगे, तो वो भी मार्केट हमेशा देखता है। और मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, पास्ट लुकिंग कभी भी नहीं होता है। आप हमेशा ध्यान रखें, आप जब बैलेंस शीट को या आप कभी भी इनकम स्टेटमेंट को जून 24 पे खड़े होकर देखेंगे ना, तो आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन सितंबर 24 पे आएंगे और अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, नई चीजें बेटर हुई है, प्लस आप उसकी कॉन कॉल को भी पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज समझ आएगी नहीं यार, बेटर और करने की बात चल रही है और एक्चुअल में उसका एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। हमको नीचे अनाउंसमेंट्स में ऑर्डर्स और ये सब चीजें भी हमको दिख रही है।
तो जब ऐसा होगा तो हम ऐसी कंपनी मतलब ले सकते हैं। थोड़ा रिस्की होता है, बट अगर एग्जीक्यूशन बैठ गया ना तो ऐसा पैसा बनता है। 3x पैसा अभी भी बना है। इवन अभी भी अच्छे डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो आपको निकलने का कोई मतलब आपको एग्जिट करने का कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है वहां पे। ठीक है, आप प्राइस देखोगे तो आप हो सकता है यहाँ पे बोल दो रेजिस्टेंस है, एग्जिट कर दो। वो सब लॉजिक्स हम यहाँ नहीं लगाते हैं। हमको अगर मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस है, मैनेजमेंट ने यहाँ से भी एग्जीक्यूट किया है यहाँ तक चीज़ों को, तो हमको बैठना है और वापस से उसके एग्जीक्यूशन पे बिलीव करना है। जैसे Q1 के रिजल्ट आएंगे, वापस से मार्केट स्टॉक अपना रन दे देगा और वापस से हमारा पैसा बन जाएगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो सिर्फ मैनेजमेंट के इंटेंशंस जो एग्जीक्यूशन है वो, और मार्क जो वो बोल रहे हैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स जो है, सिर्फ उनको ध्यान में रखते हुए टर्न अराउंड स्टोरीज पे ध्यान देना है। अब किसी की क्वेरी थी, जो वो ये बोल रहे हैं कि 2000 स्टॉक्स में से हमने पेटीएम को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो सर एक्चुअली क्या हमें ना मार्केट को हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, हमारी निगाह, हाँ, कई लोग इस तरह की स्टोरीज में बिलीव नहीं करते हैं और वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमको ऐसा रिटर्न बनाना, तो वो उसको छोड़ भी सकते हैं। जब आप पेटीएम को देखेंगे, जोमेटो को देखेंगे, हम एटर्नल की बात करते हैं एक बार। सबको चार्ट दिख रहा है ना? यस, शेयर कर रखा है मैंने। ये सब दिख रहा है। हाँ, बस ठीक है। ये क्या है कि ये मेरे रडार में कैसे आते हैं, मतलब वैसा है कि 2000 स्टॉक्स में से यही क्यों। उसका रीजन ये कि ये फेमस स्टॉक्स हैं। पेटीएम का फॉल पूरी सोशल मीडिया का एक बज है। एटर्नल, जब जोमेटो लिस्ट हुआ था, जोमेटो आप देखें 163 पे लिस्ट हुआ था, देन 50, मतलब आप देखें तो 1/3 कैपिटल रह गई आपकी, है ना। और वहां से आप देखें 300। तो ये टर्न अराउंड स्टोरी का ही एक अपने आप में वो है। जोमेटो अगर सिर्फ डिलीवरी बिजनेस करता तो वो कभी भी इस तरह का रिटर्न नहीं बना पाता, बट जब से ब्लिंकिट को अक्वायर किया है इन्होंने, तो आप देखिए मैसिव रिटर्न, 6x रिटर्न इन्होंने बनाया है। अब स्पेसिफिकली एटर्नल को ही देखना है, स्पेसिफिकली पेटीएम को ही देखना है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अगर आपको कुछ बज मिलता है कि यार नहीं यार ये कंपनी नहीं चल रही है, तो आप देखेंगे अगर उसका पोटेंशियल है। आप देखेंगे आज आप यूपीआई स्कैन करते हैं तो पेटीएम आपको मोस्टली हर जगह मिलता है। तो आपके माइंड में ये आना चाहिए ना कि ठीक है, इतनी अगर इतना ज़्यादा है, 300 रुपये एक बॉक्स का वो लेता है, ठीक है, प्लस वो चार्जेस भी लेता है, तो वो कमा तो रहा ही है। आप देखेंगे पेटीएम से आप पहले रिचार्ज करते तो रिचार्ज पे कोई फीस नहीं लगती थी, लेकिन पिछले 1 डेढ़ 1 साल से वो 1 रुपया 2 रुपया जो भी है वो पर रिचार्ज वो लेते हैं, है ना। तो आपको डेवलपमेंट जनरल में दिख रहे हैं, इसलिए आपने पेटीएम को देखना चालू किया और फिर आपने उनकी कमेंट्री भी पढ़ी। सेम अटर्नल के साथ है। अटर्नल पहले नहीं चलता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल था वो भी सेम ऐसा ही था। बट इन्होंने जैसे ब्लिंकिट को अक्वायर किया, ब्लिंकिट का जो पर मंथ का ट्रांजेक्शन है वो डीमार्ट से भी ज्यादा हो रहा है, एनुअल ट्रांजेक्शन से। आप समझ रहे हैं? तो जब उनके पास कस्टमर्स आ गए, वो भी लॉस से प्रॉफिट में आ रहे हैं, हम उसको भी देखते हैं एक बार। तो स्पेसिफिकली जो हमारे स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक्स हैं, उसमें से हमको एक बाइफरकेशन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 3 तरह की आज एनालॉजी रखी है। पहली एनालॉजी हमारी टर्न अराउंड पे है, तो टर्न अराउंड में हमेशा मेरे को लॉस मेकिंग कंपनीज देखनी है, बट वो हमको विजिबल भी है मार्केट में, उनका कहीं ना कहीं बोलें तो हमको सेंस होता है। जैसे कि फोर्स मोटर्स की हम बात करते हैं, तो हम जहाँ पे भी टूरिज्म में कहीं भी जाते हैं तो हमको अर्बेनिया गाड़ी या आप देखेंगे जो भी उसकी वो चलती है फोर्स की, ट्रैवलर चलती है ना, तो वो हमको दिखेगी। ठीक है, और वो आज नहीं दिख रही, 5 साल पहले भी वही दिखती थी मोस्टली, है ना। तो ये चीज़ें हमको दिख रही है। उनकी जब हमने बैलेंस शीट उठा के देखी तो वो लॉस मेकिंग थे, बट हमको दिख रहे हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो लोग बना रहे हैं, आरटीओ रजिस्ट्रेशन फुल आ रहे हैं, तो चीज़ें उनके लिए अगर पॉजिटिव वे में जा रही तो हमको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। अब सेकंड बात, कभी भी कोई भी टर्न अराउंड स्टोरी के अंदर हमको अगर इन्वेस्ट करना है तो हमको कभी भी फुल इन्वेस्ट नहीं करना है। हमको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। मैं एक्चुअली ये बहुत बेसिक सेशन नहीं है, इस वजह से हम बहुत बेसिक बातें नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी एडवांस बातें कर रहे हैं। दो थोड़ा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं करता हूँ ट्राई कि बेसिक्स को भी कवर करूँ। बट द फैक्ट इज कि हमको अलोकेशन नाम की एक चीज़ होती है। तो अलोकेशन में पॉइंट ये है कि हमको हमेशा एक मतलब जैसे 4% और 5% ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू एक बार इन्वेस्ट करना है।
फिर हमको देखना है कि अगले क्वार्टर तक क्या डेवलपमेंट्स आए हैं, रिजल्ट्स कैसे आए हैं। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं जैसा कंपनी बोल रही थी, अब बोल रही थी का क्या मतलब होता है, बोल रही थी का मतलब होता है जो उनकी कॉन कॉल्स होती है उसमें मैनेजमेंट डिस्कस बता देते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर तक ये टारगेट बना रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी बता रही है कि हम नेक्स्ट ईयर तक 50% से ग्रो करने का सोच रहे हैं जहां भी अभी हम हैं, और उसका 20% वो एक क्वार्टर में अचीव कर लेते हैं, तो फिर आपने जो भी पोजीशन बनाई है उसमें और ऐड ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो बोला है वो अचीव हो रहा है। तो जैसे 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 हम उनके साथ साथ ग्रो करेंगे ना, तो आपको एक कैपिटल का रिस्क भी नहीं रहेगा कि आपने 100% कैपिटल लगा दी और आप फंस गए। ऐसा नहीं करना है, 5% लगाना है। बाकी अदर स्टॉक्स हैं उनमें आप ग्रोथ स्टॉक्स में लगाएं, 30 40 40% आप एलोकेशन वहां रखें, ऑर्डर बुक रिलेटेड स्टॉक्स है। मैं और भी बात करूंगा और किस 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 तरह के स्टॉक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो आप देखेंगे अब जोमेटो का 23 का जो रन है और ये चला है, आप देखें सितंबर 24 तक, नवंबर 24 तक आई गेस, है ना। और थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन के बाद वापस से इसने रन दे दिया। तो ये ऐसे स्टॉक्स ऐसे रन बनाते हैं, ये मार्केट की वॉलेटिलिटी पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर डेवलपमेंट्स ही ऐसे हो रहे हैं कि हमको हम अगर इन्वेस्ट करेंगे और अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो हमको मोस्ट प्रोबेबल है कि हमको अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है। तो देखे एटर्नल ये मल्टीबैगर्स ही होते हैं, और टर्न अराउंड स्टोरीज हमेशा मल्टीबैगर्स मिलेगी, 60 से 300, है ना। और इसका मैं एक बार इसका बैलेंस शीट पे शेयर करता हूँ सबके साथ, P&L मतलब स्टेटमेंट। ओके, ये शेयर हो रखा है। नाउ वी आर गोइंग टू एटर्नल। आपकी इंटरनल के संबंध में साथ में एक क्वेरी आ गई सर ओला के रिगार्डिंग। चैट बॉक्स में कोई क्वेरी है? हाउ टू यू इवेलुएट ओला इलेक्ट्रिक? हम करेंगे बात ओला इलेक्ट्रिक पे। लेट्स स्टार्ट बाय एटर्नल ओनली। देखें, एटर्नल में सितंबर 23 तक लॉसेस थे, दिसंबर 23 से ये प्रॉफिटेबल हुई है। ठीक है, और हम इसका चार्ट देखते हैं। देखिए चार्ट है ना, चार्ट रिएक्ट करेगा जब हम, वेट, हाँ, अच्छा ओके, यही शेयर है, सबको चार्ट दिख रहा है ना। यस विजिबल है। हाँ, तो आप देखेंगे दिसंबर 23 से ये प्रॉफिटेबल है हमारी जोमेटो, एटर्नल, है ना, पहली बार। और वहां से ही देखिए आप चार्ट, 23 से 52 रुपीज से 300 हो गया, और आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, सेल देखिए कैसे ग्रो कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 3200, देन 3500, देन 4200 करोड़, देन 4700, 4800 करोड़, 5400 करोड़, 5833 एंड 7167। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर है, मतलब अगर देखें तो दिसंबर 23 के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखिए आप, 23 की 7000 करोड़, देन 24 में 12000 करोड़, देन 20000 करोड़, देन 23000 करोड़, अभी TTM आ रहा है, तो अभी वी डोंट नो कि आगे कितनी ग्रोथ है। बट हमको अगर देखना है, हमको ये ट्रांसक्रिप्ट देखनी थी यहीं से, दो अभी मैं इसकी प्रॉपर देख के नहीं आया हूँ, मेरे को पता है कि कौन सी ट्रांसक्रिप्ट, बट इतनी सारी ट्रांसक्रिप्ट मैं खोल के नहीं बता सकता। बट ब्लिंकिट यहीं कहीं एक्वायर हुआ है जनवरी 24 के आसपास, अभी यहाँ से रिमूव हो गया होगा, बट ठीक है। तो तो क्लियर है आई गेस सबको टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में। अब ओला इलेक्ट्रिक का सर बोल रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक का सर प्रॉब्लम ये है कि ओला इलेक्ट्रिक का है ना, मार्केट में एक रेस्पॉन्स सही नहीं है जो कस्टमर बेस का रेस्पॉन्स है। ठीक है, अब ओला नए नए प्रोडक्ट्स तो ला रहा है, अगर इसका कस्टमर बेस का रिस्पॉन्स क्लियर मतलब सुधरेगा, है ना, और एक मार्केटिंग जो इनकी टीम है वो अगर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिलता है मार्केट में कि नहीं यार ओला पहले से बेटर हो गई है, चीजें बेटर हो गई, आज आप किसी से भी पूछेंगे तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो इससे कहीं अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। हेलो, एम आई ऑडिएबल? Yes, यस sir. अरुण जी। सो ओला इलेक्ट्रिक के साथ यही प्रॉब्लम है, अभी तो फिलहाल तो वो प्रॉब्लम में है, जब वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे तब हम देख सकते हैं, और वो हमको देखने का तरीका वही रहेगा। चार्ट इसका खुल नहीं रहा है, ठीक है, बोला बोला इलेक्ट्रिक ये मूव करने लगा है, लेट्स सी।
क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट पहली बार आप देखें, ये 23 से डाउन गया था 1045 तक, 600 तक एक्चुअली, एंड देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग बैक अगेन, है ना। अब देखें, ये जैसा अपन ने, आप देखेंगे पेटीएम में भी जैसा हमने देखा था, एक बार मेजर लॉस एक क्वार्टर में आया था, देन लॉसेस कम होने लगे थे, तो ओला इलेक्ट्रिक में भी वैसा ही सीन क्रिएट हो रहा है। तो वी कैन इन्वेस्ट, वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग लिटिल लिटिल, अभी शुरू करें। अगर ये इनके मार्जिन इंप्रूव कर देता है, जैसे यहाँ पे 12% का ही ओपीएम आ गया था एक बार, अगर ये कर देता है, प्लस थोड़ा सा मार्केट में इसके सेंटिमेंट सुधरते हैं, इनका कस्टमर सर्विस सुधरता है, देन वी मे गेट रियली गुड रिटर्न्स इन ओला ऑल्सो। तो एनी अदर क्वेरी फॉर टर्न अराउंड, फिर अपन नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किसी की हो तो चैट में आप लिख सकते हैं। सर वो ग्रेविटा इंडिया एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन अपने आप में ग्रोथ स्टॉक है, वो टर्न अराउंड स्टोरी पे है नहीं। ग्रेविटा इंडिया आई डेंट नो। यस बैंक इज गुड, यस बैंक अभी करंट टाइम में मेरे को भी रडार में आया है, मेरे को लगता है कि यस बैंक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। अभी मैं एग्जैक्ट नहीं, मतलब उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे और स्टॉक्स के नाम मत लिखें। अपन अब इसके बाद, बाकी इसके मैं इसके बाद अपन मैं रिक्वेस्ट आगे करता हूँ चलते सभी हैं। पार्टिसिपेंट से, सॉरी सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स के माध्यम से भेजते जाएं, हम डेफिनेटली उस एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको डेफिनेटली लेंगे। सर आप अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। हाँ, एवरीवन, आप एक बात देखें, हम यहाँ पे है ना एक बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं, बहुत 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 कॉम्प्लेक्स बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि देखो, आपको कोई भी स्टॉक मिलता है, देखो मेरा रिकमेंडेशन से मत जाओ, आप आपके रिकमेंडेशन से चलो, आप खुद का एक बेस क्रिएट करो। जैसे सर ने, निर्भीक सर ने बोला कि हम सीए हैं, हम शुरू से ही बैलेंस शीट्स एंड पीएनएल को देखते आ रहे हैं, हम लोगों ने ही इस पूरे बेस को क्रिएट किया है, तो हमसे अच्छा कोई एनालाइज नहीं कर सकता। आप बिल्कुल भी देखो, पैसा अगर आप बहुत ज्यादा नहीं लगाओगे ना, अगर अलोकेशन 5% लगा के एक बार आप ट्राई करोगे ना चीजों को, और अगर आपसे बैठेगा तो आपको समझ पड़ जाएगा कि नहीं, इतना टफ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होना है। चार्टर्ड्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़े से पास्ट लुकिंग होते हैं, क्योंकि हम पुराने स्टेटमेंट्स को लेके ही बैलेंस शीट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। बट हमको फॉरवर्ड लुकिंग होने के लिए बहुत बेसिक सा एक मैनेजमेंट टूल दिया हुआ है, वो है ट्रांसक्रिप्ट्स। तो आप ट्रांसक्रिप्ट रीड करो, आपको समझ पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट की टोन पकड़नी है बस, और कुछ नहीं करना है। उनको समझना है, वो जो बोल रहे हैं, आप उनके बोलने पे बिलीव करो कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं कि हम 40% से ग्रो करेंगे, तो आप मानो कि वो ग्रो करेंगे। अगर उनका रिजल्ट बेकार आएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे झूठ बोल रहे हैं। और वो झूठ बोल रहे हैं, तो आपने अगर 5% एलोकेशन किया है और आप बाहर भी निकल गए, तो इतना कोई पैनिक, इतना कोई बहुत लॉस नहीं हो जाएगा आपको, इट्स फाइन। ऐसे ट्रायल एंड एरर तो करना ही होगा, तभी तो आपको अच्छे मैनेजमेंट्स, अच्छी चीजें मिलेगी। अगर आप रीड नहीं करेंगे, अगर आप मानो अभी आपने मेरे से बोला कि कोई भी स्टॉक के बारे में बोला, और मैं आपको बोल देता हूँ कि चलो, आप मान लो ओला की बात चल रही थी, मैं बोल देता हूँ ओला ले लो, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझको भी पढ़ना पड़ेगा, और मैं भी उसमें से एक बहुत छोटी कैपिटल लगा के एक बार उसको ट्रायल पे डालूंगा कि नहीं ठीक है। बट अगर मेरे को लगता है कि वो एग्जीक्यूशन ही नहीं आ रहा है, अगले क्वार्टर में और बुरा रिजल्ट आया, मुझे भी एग्जिट करना पड़ेगा लॉस में। मैं मतलब एवरीबडी हैव द सेम डेटा। तो बस बात ये है कि आपको इंटरप्रेट करना सीखना पड़ेगा। आज हम यही देख रहे हैं कि हमको सीखना कैसे है। कुछ नहीं करना है, ट्रांसक्रिप्ट खोलना है, ये ओला इलेक्ट्रिक खोला, आप आराम से देखें, आपको जितना जितना देखना है, मतलब यहाँ पे पूरी हर चीज क्वेश्चन एंड आंसर। और आपको है ना, इवन बैलेंस शीट में भी अगर कभी ये लोग कुछ विंडो ड्रेसिंग करेंगे, तो वो भी आपको है ना, यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं एक्चुअल में, एक्चुअल में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पे आपको सब चीज समझ में आएगा। देखें ये एक क्वेश्चन जैसे अगर हम लेते हैं ना, इनका कोई से भी क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे, हाई गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट टू एज on the volumes of the quarter, the 68,000 volume. Could you help us understand what is this, what the split is between the electric scooter and electric motorcycle, as well as also
द 121,000 ASP, वेयर कुड द मोटरसाइकिल ASP कंपेयर वर्सेस स्कूटर ASP। ठीक है, अब देखें ये ASP जो आपका जो जो भी इसका टर्म है ना, ठीक है, तो वो ASP टर्म को आपको पहले गूगल करके समझना पड़ेगा कि ये ऑटो इंडस्ट्री में इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, फिर वहां से आप यहाँ आए, वापस से समझें, फिर ये लोग बकायदे इसका आंसर देते हैं। तो आप देखेंगे कि, और इवन आप भी खुद क्वेश्चन कर सकते हैं इन लोगों से, वो एक बिल्कुल ही सेपरेट चीज हो गई, लेकिन आप इनमें भी काफी क्वेश्चंस के आंसर आपको सेटिस्फाई कर देंगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। और आप बिल्कुल क्लियर रहें, आपको जब सेटिस्फेक्शन आए कि नहीं, मैं मेरे को इस मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस है, चाहे वो टर्न अराउंड स्टोरी हो, तो ही आप इन्वेस्ट करें। तो नाउ हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, है ना। वो वो भी बहुत अच्छा पोर्शन है, वहां भी हम उस तरह के शेयर्स में भी हम इन्वेस्ट करते हैं, और हमको आना चाहिए कैसे इन्वेस्ट करना है। तो मैं दूसरा स्टॉक लेना चाहूंगा HBL इंजीनियरिंग। ठीक है, दो मार्केट कैप, अच्छी मार्केट कैप है इनकी, 23,000 करोड़, 23,600 करोड़, ये बहुत ही निश। अब हम जो बात करने वाले हैं अब, है ना, हमारे मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन कंपनीज के पास आप देखें तो एक उनका एक खुद का ही, मतलब जैसे हम यूएसपी बोल सकते हैं, उनका खुद का एक यूएसपी है। तो HBL इंजीनियरिंग के पास क्या है कि जो रेलवे में कवच 4.0 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, उसकी अप्रूव्ड कंपनीज सिर्फ दो ही है पूरे मार्केट में। एक है HBL इंजीनियरिंग, एक करनेक्स करके, KERNEX, है ना। तो ये इनका यूएसपी है, आप समझे, इनको वो ऑर्डर्स आने ही हैं, अगर गवर्नमेंट को उस प्रोग्राम को रोल आउट करना है तो उनको ये ऑर्डर्स आने ही हैं, और वो आने के बाद हमको लग, और वो दिखेगा, एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे देखना है। और ऐसी कंपनीज बहुत रिटर्न बना के देती है, बहुत बहुत तगड़ा रिटर्न बना के देती है। और मैं बता देता हूँ आपको, जब वैल्यूएशन का हम पढ़ेंगे ना, तो ये बोलेंगे लोग के पी इतना है, ये और ये। देखो सर, कुछ भी मायने नहीं रखता, अगर ऑर्डर आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है, और सेल ग्रो कर रही है हायर पेस से, तो ये पी कोई नहीं देखेगा। हर व्यक्ति ये देखेगा कि यार, मतलब मार्केट ये देखेगा, व्यक्ति तो क्या, मार्केट यही देखेगा कि ये लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और जब परफॉर्मेंस चली जाएगी ना, तो ये स्टॉक चलना भी बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली। बट ये बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे को मतलब कुछ समय से पसंद है। और मैं बता देता हूँ, हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं ये मेरी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ना। हमारी बाइंग प्राइस और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। कोई भी इस पे इन्वेस्ट ना करें, जस्ट समझें कि चीज़ों को कैसे कैच करना है। ठीक है, तो हम HBL इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। वेट अ मिनट, हाँ। तो ऑर्डर बुक वाली कंपनीज क्या होती है, जिनको, जैसे मैं, है ना, एक तो HBL इंजीनियरिंग की बात करूंगा, एक बार निर्भीक सर से मैं मिला था, तो हम आजाद इंजीनियरिंग की भी बात कर रहे थे। तो वो भी एक, उनकी भी एक यूएसपी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक हम HBL इंजीनियरिंग, तो मैं कवच 4.0 की एक अप्रूव्ड कंपनी है, आप समझें कितना निश इनको हो गया है। अब हम देखते हैं HBL इंजीनियरिंग के बारे में। हम्म, कैसे स्टार्टिंग में हमको कैसे पता लगेगा। अब आप बोलेंगे कि सर, हमको इतने सारे स्टॉक्स में कैसे पता चलेगा कि हमको इतने सारे स्टॉक्स में कैसे पता चलेगा कि HBL इंजीनियरिंग ही एक है। जैसे देखो, अगर अभी हमने बात करी कि मोदी जी ने बोला कि सेमीकंडक्टर का जो हम लोग ये करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, तो ये सब न्यूज़ में होता है, समझे। ये कवच जो है ना, ये कवच बहुत टाइम से गवर्नमेंट पुश कर रही है, तो आपको ये कवच आपको न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं दिखेगा ही सही। सेम, मैं एक और बात बोलूँ, जैसे शक्ति पंप ने जो रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ सालों में, उसका सबसे बड़ा रीजन है PM कुसुम योजना। आप समझे, जब बजट आता है ना, तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, ऐसी स्कीम्स निकालती है जिससे हमारे देश को डेवलपमेंट मिले। वो स्कीम्स का जो पैसा होता है ना, वो कंपनियों पे ही जाता है। आप देखेंगे सोलर कंपनीज ने पिछले 3-4 साल में जो रिटर्न दिया है ना, वो मोस्टली PM सूर्यघर योजना के बाद दिया है। आप देखो, PM सूर्यघर योजना जिस दिन अनाउंस हुई थी, उस दिन की सोलर की कोई भी कंपनी उठा के देख लो, वहां से 2x 3x 4x तो उन्होंने दिया ही दिया है रिटर्न। तो आप
बहुत ही बेसिक है, बहुत जनरल है। हम तो सीए हैं, हम जब बजट को एनालाइज करते हैं हम देखते हैं कि इतना करोड़ का ऑर्डर इसको मिल रहा है, डिफेंस को इतना ऑर्डर मिल रहा है, तो वो पैसा जाएगा कहाँ? कंपनियों में तो जाएगा। तो हमको वही देखना है कि उस सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी जो काम कर रही है, जो कंपनी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जिसको ऑर्डर्स जाते हैं कंपनी के, तो वो हमको देखना है। ठीक है, तो हम एचबीएल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। एंड एचबीएल इंजीनियरिंग में सबको दिख रहा है ना सर, ये एचबीएल इंजीनियरिंग का मैंने एक्सेल बनाया हुआ है। जी, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है। ओके सर। हेलो, इज इट ओके? हाँ सर, अभी अभी परफेक्ट है। तो देखिए एचबीएल इंजीनियरिंग देखिए, 6 अप्रैल आप देखेंगे, 9 फरवरी को पहला ऑर्डर इसको आया था 410 करोड़ का। 30 मार्च को 500 करोड़ का कवच का ऑर्डर आया है। 6 अप्रैल को 762 करोड़ का आया है। ठीक है, फिर 4 मई को आया है, 18 मई को आया है, 1 जून को आया है। इवन इसके पता है, मैं आपको एचबीएल इंजीनियरिंग, मतलब ये तो मैंने अभी रिसेंट डेटा लिया है। एचबीएल इंजीनियरिंग के पास ईयर 2023 में भी एक कवच का ऑर्डर आया था, पहला ऑर्डर, उसके पहले किसी के पास नहीं था। तो पर क्या हुआ ना, उसके बाद वो स्टॉक चला नहीं। कवच का ऑर्डर आने के बाद भी नहीं चला। उसका कारण क्या था कि आपने दो, मतलब मैं भी अगर उसमें इन्वेस्ट करता तो क्या प्रॉब्लम हो गई कि गवर्नमेंट का बजट खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने कवच का रोल आउट जो है वो स्टॉप कर दिया था कुछ टाइम के लिए। तो जब हमने देखा कि उसके रिजल्ट में उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं आया है कवच ऑर्डर्स का, तो फिर क्या होता है ना, आपको वैसे टाइम पे या तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को पॉज करना होता है या फिर एग्जिट करना होता है। देखो आज हम कवच का ऑर्डर 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 हमने ऑर्डर सारे देख लिए कि यार फलाना ऑर्डर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जब रिजल्ट आएगा ना, या तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने चाहिए। अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं ना, तो भी आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं रहना है। आपको समझना है, या तो फिर मैनेजमेंट उसके बारे में बताए कि क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया इन्होंने कवच का ऑर्डर, या कवच का ऑर्डर वो क्लियर करते हैं बकायदा उसमें कॉन कॉल्स। अगर ये तो नहीं करती कंडक्ट, बट अगर ये अभी करने लगी है, इसके पहले ये नहीं करती थी। बट या तो फिर एनुअल रिपोर्ट से, या फिर आपको यूट्यूब पे आप, है ना, एचबीएल इंजीनियरिंग प्रमोटर्स ऐसा करके लिख के देखें, तो ये लोग क्या होता है इंटरव्यूज भी देते हैं अपने सीएनबीसी या जो भी न्यूज़ चैनल से। तो वो वहां पे वो लोग बताते हैं बकायदा रिजल्ट के बाद कि यार हमारे रिजल्ट इसलिए अच्छा नहीं आया है या अच्छा आया है, तो कवच के ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट करेंगे नहीं। और अगर एग्जीक्यूशन आ रहा है ना, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा है ना, तो आपको या तो पॉज करना है या फिर एग्जिट करना है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि इनके अलावा, कवच के अलावा भी इनके काम है, बट ठीक है, हम कवच मेन है इनका। तो अब देखें कवच में इतने सारे ऑर्डर इनके पास अभी आ गए हैं। 2023 में ऑर्डर आया था, उसके बाद गवर्नमेंट का बजट खत्म हो गया था, तो उन्होंने रोल आउट करना बंद कर दिया था। इनके रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे, तो ये 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था स्टॉक। एक बार ये ऑर्डर आने लगे, अब मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ, प्राइस कैसे मूव करती है। एक बार चीजें डेवलप होती है तो कितनी अच्छी डेवलप होती है। एक सेकेंड, हाँ, ये है, ये देखें, एचबीएल इंजीनियरिंग चार्ट दिख रहा है सबको, शेयर हो गया ना? हाँ, ठीक है। अब जनवरी में आप देखेंगे इसको, जनवरी में ये 400 रुपये यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर, इसको स्टार्टिंग, इसके पहले भी थे इसके बाद ऑर्डर, बट आप मान लें 400 रुपये की प्राइस पे आपको इसमें इन्वेस्ट करने फर्स्ट ऑप्शन मिला है। उसके बाद आपने सिर्फ मान लिया एक्यूमुलेट ही किया है इसको, क्योंकि ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं। और इसने क्या है ना, Q1 में भी रिजल्ट में एग्जीक्यूशन दिखा दिया कवच का, और एग्जीक्यूशन आते ही देखें आप, इसका प्राइस 881 हो गया। अब क्या होता है ना, जब 4-5 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक इसकी है, तो हम इसके है ना फ्यूचर के फाइनेंशियल्स बना सकते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेंथ है एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो आप क्या करें, जो भी इनकी ऑर्डर बुक है, मैं और चीज़ें दिखाता हूँ आपको, और उसका अरुण सर, एग्जीक्यूशन टाइम। अरुण सर, जी हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं ये ऑर्डर बुक हमें कहाँ देखने को मिल सकती है, इस पर भी ओके थोड़ा सर, हाईलाइट कीजिए। ओके। ऑर्डर बुक देखने के लिए वही सेम, आप स्क्रीनर पे जाएं, स्क्रीनर पे नीचे जाएं, इंपॉर्टेंट में जाएं, ये देखें, ये 15 जून को देखो, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 आ रहा है, 30 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम साउथ सेंट्रल कवच, अपग्रेड ओवर 350 किलोमीटर, 24 मंथ टाइम लाइन। यहाँ पे आ रहा है 132 करोड़, दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस सर। है ना? इसके बाद हाँ, देखें, विजिबल। ये लिखा है देखो 101 करोड़। तो एक्चुअली क्या होता है, अनाउंसमेंट कंपनी को देना ही है बीएसई की वेबसाइट पे, और वो हमको यहाँ इंपॉर्टेंस में दिखेगा। देखो ऑर्डर्स एक बार दिखने लग गए आपको, तो आपको क्या करना है,
वो मतलब इसको एक्सेल में नोट करते जाना है। ठीक है, एक्सेल में एक बार आप नोट करते करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एंड देन आप एक बार टोटल वैल्यू निकाल लें, देन उसका एक फाइनेंशियल्स बना लें कि टोटल सेल्स क्या होनी चाहिए, टोटल प्रॉफिट क्या होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि बड़ी कंपनियां ना एक सिमिलर मार्जिन पे काम करती है, और मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो वो तो आपके लिए अच्छा ही है। आप देखें देखें ओपीएम, और ओपीएम बढ़ना तो एक सबसे बड़ी मतलब बहुत ही बढ़िया बात है। आप देखें मार्च 22 में 11% का ओपीएम था, मार्च 24 में 19 का कर दिया इन्होंने, देन 25 में 20 का, एंड अभी 23% के ओपीएम पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब कवच के ऑर्डर्स आने से और एग्जीक्यूशन होने से इनको प्रॉफिटेबिलिटी में इनका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ठीक है, तो मार्जिन आप आपके पास जब मार्जिन अवेलेबल है कि आपको पता लग रहा है, मानो 32 आ रहा है अभी कि पहले 17 था, आप तो ऑन एन एवरेज 20% से एक बैलेंस शीट, एक फ्यूचर का बैलेंस शीट एंड पीएनएल बना के देख लें। बैलेंस शीट नहीं मतलब पीएनएल बना के देख लें, पीएनएल से पैट निकाल लें, पैट निकाल के आप आराम से इसका पी निकाल लें, फॉरवर्ड पी। यहाँ पे फॉरवर्ड भी आप एक बार निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कि अंडर वैल्यूड है, फॉरवर्ड ओवर वैल्यूड है। दूसरी बात दूसरी बात, अब मान लो आपने कोई एक सर्टन क्राइटेरिया से बना लिया, और इसको ऑर्डर कंटिन्यूअसली आते ही जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, और बेस बड़ा होता ही जा रहा है, तो ये पी है ना आपका फॉरवर्ड पी कम, और जैसे फॉरवर्ड पी कम होगा तो आपका ये स्टॉक कहाँ तक चलेगा ना, ये आप खुद प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही है कि आप है ना एक बार इन्वेस्ट करें, एक बार रिजल्ट आने दें, फिर वापस इन्वेस्ट करें, फिर देखें ऑर्डर्स और आ रहे हैं क्या, एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है। और इनमें क्या होता है गवर्नमेंट ऑर्डर्स में एक जो प्रॉब्लम है ना वो ये है, मैं एक सेकेंड, अब किसी ने मेरे को बोला है कि ऑर्डर कितना एग्जीक्यूट हो गया कैसे पता चलेगा। तो सर एक्चुअली क्या है कि जब आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो रिजल्ट्स के अंदर वो कमेंट्री आती है, तो उस कमेंट्री में आपको पता लग जाएगा कि कितने एग्जीक्यूट हुए, प्लस वो रिजल्ट ऑटोमेटिक ही बोल देता है, आपको दिखेगा ना, आपको मार्जिन शिफ्टिंग दिखेगी। एक सेकेंड, जैसे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, आप देखें 476 करोड़ का मार्च क्वार्टर था, 602 करोड़ का एकदम हो गया, तो इसका मतलब कवच के ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, तभी तो ये इतना सेल बढ़ी है इनकी। और तो क्या रीजन होगा, क्योंकि ऑर्डर्स जो इनको मिल रहे हैं वो एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, तभी इनकी सेल बढ़ रही है, और सेल बढ़ेगी तभी तो हम कर पाएंगे। स्क्रीनर के लिए लॉगिन की, हाँ यस सर, वो लॉगिन आपका जनरल मेल आईडी से हो जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, तो एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में हम देखेंगे। अभी एचबीएल इंजीनियरिंग की पूरी बात करते हैं। अह, ठीक है, हाँ मैं एक चीज़ शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ। ये हो गया है, देखें ये मैंने बनाया हुआ था 1 मई तक। तो आप देखेंगे कि ऐसे आप टोटल लगाओ आराम से, है ना। और इसका टाइमलाइन लिखा हुआ है, मानो 24 मंथ का टाइमलाइन लिखा हुआ है, तो आप देख लें कि भाई 1 मई से 24 मंथ है ना, तो इस फाइनेंशियल ईयर में कितना कवर होना चाहिए, एक एस्टिमेट रेशियो क्रिएट करें, उस रेशियो के बेस पे टोटल लगाएं कि इस साल का टोटल टर्नओवर क्या होना चाहिए, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन इट। यू कैन चेक ऑल्सो कि भाई चीज़ें जैसा वो बोल रहे हैं वैसा रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। एक्चुअल मैंने तो देखा है कि जो ये लोग ऑर्डर्स आते हैं और अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट होते हैं तो जो नंबर आप लिख लोगे ना वही नंबर बैठता है, और वही टारगेट आता है आपके प्राइस का, जो आपने एक बार पूरा सिनेरियो क्रिएट कर लिया। तो ये एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में बात हुई। अब इसका एक अभी तो ये तो अभी शुरू ही हुआ है, मतलब देखा जाए तो शुरू ही हुआ है इन द सेंस, कुछ हद तक तो मतलब प्राइस तो डबल हो ही गई है 6 महीने में, 6 7 महीने में। बट हम एक चीज और देखते हैं, एक ही कंपनी और मैं पहले पकड़ता हूँ, शक्ति पंप। ठीक है, चार्ट दिख रहा है सबको शक्ति पंप का। यस सर, विजिबल है।
शक्ति पंप को है ना यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर मिला था पहली बार पीएम कुसुम योजना का, जो कि गवर्नमेंट ने 2023 में आई गेस करी थी। और इनको 210 रुपए के आसपास, मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये स्प्लिट हो गया है तो इसकी प्राइस कम दिख रही है। उस टाइम ये 700 रुपए के आसपास का भाव होता था इसका। और अभी ये आप देखेंगे यहाँ से ये मूव करने लगा, और ये 200 से अब आप देखें 1200 1400 अराउंड। इसमें बोनस और स्प्लिट बहुत सारी चीज़ें भी हैं बीच में। तो ये मतलब देखें तो 20 बैगर था ये, बट ये भी ऑर्डर बेस्ड ही था। और इसको बहुत ऑर्डर मिले शक्ति पंप को, इसकी पूरी इंडस्ट्री में इसको ही सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिले गवर्नमेंट के, और इसने एग्जीक्यूट भी किया रिजल्ट्स में। तो आप देखें शक्ति पंप का रिजल्ट भी बहुत तगड़े आए हैं। और अगर आप बैठते मतलब इस तरह के स्टॉक्स में तो देखें आप रिटर्न, मतलब बम्पर रिटर्न आता है। देखो आप रिजल्ट देखो आप, 153 करोड़ सितंबर 23 के बाद डायरेक्ट 496 करोड़ की सेल्स। मतलब एग्जीक्यूशन दिख रहा है, रिजल्ट में ही दिख रहा है। यहां से भी अगर आप कैच करते हैं दिसंबर 23, हम देखते हैं दिसंबर 23 का भाव देखें आप लोग, 175 रुपए का भाव था। वहां पे आपको कुछ नहीं करना था, आपको मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़नी थी। आपको देखना था कि पीएम कुसुम योजना का पहला ऑर्डर आया है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना था। नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा और अच्छा रिजल्ट आया तो और पैसा इन्वेस्ट करना था। और जब वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है, देखें आप वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होती है, 200 रुपये से 1200 रुपये। तो वो जो बोलते हैं ना मल्टी बैगर फाइंडिंग, तो वो मल्टी बैगर फाइंडिंग ऐसे होती है। तो इस तरह के स्टॉक्स भी बहुत अच्छे चलते हैं जिनका एक अपना निश होता है। जैसे शक्ति पंप का एक निश था, उसके उस टाइम पे ओसवाल, अभी ओसवाल पंप अभी लिस्ट हो गया है ना। ओसवाल पंप जब लिस्टेड नहीं था, लिस्टेड यही अकेला था। और पीएम कुसुम के इसको ही ऑर्डर आ रहे थे। तो देखो ऐसे स्टॉक चलता है। एचबीएल इंजीनियरिंग मैं बोल रहा हूँ, कवच 4.0 अप्रूव्ड कंपनी है, दो है पूरे लिस्टेड स्पेस में, करनेक्स। और ये करनेक्स एक्चुअली एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका मूव नहीं आ रहा है। ये करनेक्स का चार्ट है, करनेक्स माइक्रो सिस्टम, ये भी कवच 4.0 अप्रूव्ड कंपनी है। तो ये इसका एग्जीक्यूशन अभी तक रिजल्ट्स में हमको दिखा नहीं है। तो ये अभी इतना मूव नहीं किया है, बट एचबीएल के रिजल्ट में वो दिखने लग गया है, तो वो मूव कर रहा है। वो कहाँ तक करेगा वो किसी को नहीं पता। ये करेगा और अगले क्वार्टर में रिजल्ट खराब आ जाएंगे, मतलब वो बजट खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट का, हु नोज। वो हमको ट्रैक करना पड़ेगा। तो एक बार क्या होता है ना कि कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद हमको एज ए एक्टिव इन्वेस्टर सोचना है। हमको कभी भी पैसिव इन्वेस्टर नहीं सोचना है। हमको ये नहीं सोचना हमने एचबीएल इंजीनियरिंग ले लिया भाई, हाँ ठीक है ऑर्डर आ रहे चलते रहे, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर आ रहे हैं, उसका पैसा भी तो रियलाइज होना है, ठीक है। प्लस वो ऑर्डर कोई और कंपनी तो अप्रूव नहीं हो गई है। मतलब बहुत सारे सिनेरियोज आपको देखने पड़ते हैं। अब मेरे को एचबीएल इंजीनियरिंग इसलिए पसंद आती है क्योंकि क्या है कि आफ्टर कवच इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली ये लोग वो नहीं करते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, अपना खुद का कॉन कॉल्स नहीं करते। इनकी एनुअल रिपोर्ट होती है, और एनुअल रिपोर्ट में से मैंने ये कुछ फाइंडिंग्स निकाली थी। आप देखें, मतलब मैनेजमेंट की क्वालिटी आप देखें, है ना। उन्होंने ये तक बोल दिया कि कवच तो है ही है हमारे पास, अब कवच नहीं होगा तो फिर क्या। ठीक है, तो आप देखिए थ्रू आउट एचबीएल 40 years, वन और टू प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटेड द बल्क ऑफ द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स एंड फाइनेंस्ड द R&D और ग्रोथ और लो पीरियड्स of all other product. Because Kavach is currently such a product, investor who take a long-term view have recently been asking what happened after 5 years when Kavach is implemented over the entire IR network. आप समझ रहे हैं, मतलब 5 साल के अंदर अगर हम पूरा ही नेटवर्क कवर कर लेंगे कवच में, ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे भाई, आपने जब पूरा ही काम कर दिया फिर क्या। The simple answer is that covering the entire IR network of Kavach is going to take much more than 5 years. And HBL is now developing other products. Even in real signaling, IR has a long way to go in signaling. But the key to understanding HBL is that it had and has many future products in its pipeline. Not all will succeed. These projects are not disclosed to lower risk the imitative competition. The conception to profit timeline has averaged 15 years. Covers took 20 years. तो आप समझ रहे हैं बात को, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट इतना ऑब्सेस्ड है अपने कंपनी को लेके कि हमको डेवलप करना है। हम और भी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, हम बता नहीं सकते हैं। आप मतलब आप कवच को ही मत देखो, हमारी कंपनी में और भी चीज़ें हैं जो विद टाइम आपको दिखेगी। तो आपको मैनेजमेंट पे बिलीव करना है, थोड़ा इन्वेस्ट करना है। आपको और विश्वास आता है देन गो ऑन। और कॉन कॉल्स पढ़े टाइमली, इन लोगों के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े। आपको डाउट होता है तो एग्जिट कर दें, क्या दिक्कत है भाई। अगर आप इनिशियल में कभी भी बहुत ज़्यादा अलोकेशन नहीं करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो कभी भी अलोकेशन का एक अपना पॉइंट रखें। आप खुद की रिसर्च बेस कर रहे हैं तो छोटा छोटा अलोकेशन करें।
जब कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे मैनेजमेंट पे, रिजल्ट्स पे, तो आप इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं। ये मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। सर, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, इफ इट्स ओके। आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग। यस सर। कुछ क्वेरीज हैं, उनको देख लेते हैं। तो लॉग इन विद जिम गूगल, हाँ ठीक है। हाउ हाउ वी कैन नो विच कंपनीज आर अप्रूव्ड कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स? सर, आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको देखो, जैसे अभी सेमीकंडक्टर आया ना, तो आप सर्च करें, गूगल सर्च करें, आपको मिल जाएगा। चैट जीपीटी करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैं मतलब इनिशियल में तो वैसे ही होगा। उसके बाद आपको उस कंपनी के अंदर जाके उसकी एनुअल रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देन यू विल सी कि वो लोग एक्चुअल में वो लोग काम करते हैं नहीं करते हैं। एचबीएल इंजीनियरिंग में जब एक बार कवच आया, तो आपको गूगल पे मिलना ही है। अगर कोई भी स्कीम एक बार अगर आप पीएम कुसुम आया, तो आप गूगल पे एक बार टाइप करें कि पीएम कुसुम योजना लिस्टेड प्लेयर्स, आपको शक्ति पंप वो इनिशियल में दिखा देगा, अगर उसके बाद ऑर्डर आ गया है तो। अगर ऑर्डर नहीं आया तो वो नहीं दिखाएगा। तो क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जो बजट जब भी आता है, तो उसके बाद जो जो स्कीम्स होती हैं, आप एक बार नोट डाउन करें। आपको लगता है कि नहीं यार, ये बेनिफिशियरी है इसमें, जो जैसे मानो अभी हम वाटर वेस्ट की बात कर रहे थे, या वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की भी जैसे कुछ कंपनीज है, गवर्नमेंट बात करती है। अभी जैसे अभी हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ा केस देखा, जो एथेनॉल की जो कंपनी है सीएन एग्रो, जिसमें नितिन गडकरी जी के मतलब सन उनके डायरेक्टर हैं, है ना। और एथेनॉल जो पिछली बार से ब्लेंडिंग, मतलब एक साल से जो हुआ है, वो कंपनी 40 रुपए से 600 रुपए का भाव हो गया। अब अगर आप एथेनॉल का जब नाम सुना था आपने 1 1.5 साल पहले, आप गूगल करते तो मोस्ट प्रोबेबल आपको सीएन एग्रो का नाम मिलता। आप उसको देखते, उसमें उसका अगर ऑर्डर आ रहा है, आप उसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं। 40 पे नहीं, 100 पे मिलता आपको, बड़ा 600 तो हो ही गया। तो थोड़ा तो आपको सर्च करना ही पड़ेगा सर, वो स्क्रीनर पे वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको आपका एक करना है वैसे, दैट वीज। तो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फॉर ग्रोथ कंपनीज। तो हम ग्रोथ कंपनीज की बात करते हैं, तो ग्रोथ कंपनीज होती क्या है? ग्रोथ कंपनीज के बारे में सबसे बढ़िया है, सबसे इजी वे है, उनको ढूंढना भी पॉसिबल है। और मतलब इजी भी है, पॉसिबल भी है, प्लस आपको उससे काफ़ी नॉलेज भी क्रिएट होती है ना। तो ग्रोथ कंपनीज क्या होती है? जो कंपनीज कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, प्लस उनके मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं वो उसको एग्जीक्यूट भी कर रही है। तो मैं उसको बोलता हूँ
मतलब बहुत तरह के, दो तरह के मार्केट लीडर है मेरे लिए। एक जिनका मार्केट शेयर ज्यादा है, एक जिनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा है। तो मेरे लिए मार्केट लीडर ग्रोथ वाला है, ना कि जिसका मार्केट शेयर ज्यादा है। तो ग्रोथ कंपनीज की बात हम करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमको सेक्टरियल एनालिसिस करना है। हमको ये समझना है कि आज के टाइम पे कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है और करने वाला है। अब आप बोलेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ग्रो कर रहा है और करने वाला है। उसकी दो मेथड्स हैं, है ना। पहली मेथड ये है कि हम सेक्टर वाइज चीजों को समझना चालू करें। जैसे हमने सीमेंट सेक्टर पकड़ा, सीमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक को देखा, अल्ट्राटेक कितने परसेंट से अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दे रही है ना, या ईयर ऑन ईयर रिजल्ट दे रही है। वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कैसे कंपैरिजन करना है वो मैं बताता हूँ। ईयर ऑन ईयर उन कंपनीज को हमको देखना है जो कंपनियां मतलब जिनके अंदर सीजनेबिलिटी नहीं होती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको उस कंपनियों को देखना है, सॉरी ईयर ऑन ईयर उसको देखना है जिसमें सीजनेबिलिटी होती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनको देखना है जिनमें सीजनेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, तो हमको क्या करना है, पहले सारे सेक्टर्स पकड़ने हैं। जैसे सीमेंट हो गया, ज्वेलरी हो गया, इसके बाद हमारे हॉस्पिटल हो गया, होटल्स हो गया। ठीक है, सभी सेक्टर्स को देखेंगे। फिर उन सेक्टर्स के जो लीडर्स हैं उनको देखेंगे, और उन लीडर्स में ये देखेंगे कि वो लीडर्स कितने से ग्रो कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, जैसे अगर अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक का आप मार्केट कैप देखेंगे, अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक का मार्केट कैप है 3,75,000 करोड़। ठीक है, अगर अल्ट्राटेक ये बोलता है या एग्जीक्यूट करता है एनुअली कि मैं 25% से ग्रो करूंगा, ठीक है, तो आप समझ लो कि ये सेक्टर में दम है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अल्ट्राटेक अगर ये बोलता है कि मैं 25% से या 20% से ग्रो करूंगा इतने बड़े ऊपर बेस, मतलब 3,75,000 करोड़ की मार्केट कैप के बाद, तो आप समझें कि इस पूरे सेक्टर में कहीं ना कहीं एक दम है। तो आप वैसे करके सेक्टर, कौन से सेक्टर चलने वाले हैं या चलेंगे, वो आपको यहां से पता लग जाएगा। तो जैसे अभी करंट टाइम में मैं बताऊं आपको, होटल इंडस्ट्री के जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके रिजल्ट सब 20% के ऊपर ही आ रहे हैं। ठीक है, ज्वेलरी स्पेस के रिजल्ट 15% के ऊपर आ रहे हैं, मोटा मोटी देखा जाए तो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक्स के रिजल्ट सबके 20% से ऊपर है। वायर्स एंड केबल के रिजल्ट सब 25% से ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने ये 4 5 6 इंडस्ट्रीज कैसे पकड़ी, ऐसे ही पकड़ी कि उनके लीडर्स को देखा कि भाई उनके लीडर कितने से ग्रो कर रहे हैं। अब बड़े बड़े प्लेयर ही इतना ग्रो कर रहे हैं, तो छोटे तो करने ही, आप समझ रहे हो ना, छोटे बेस पे तो और ज्यादा पॉसिबल है कि वो बड़े को भी बीट कर दे। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि सेक्टर के जो लीडर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसे सेक्टर का लीडर पकड़ लिया अपन ने, उसको समझ लिया कि यार वो इतने से ग्रो कर रहा है। अब आपके पास एक सेक्टर पूरा एनालिसिस करने के लिए आ गया, और आपको उस पूरे सेक्टर को जमाना है, देखना है, उसके इनकम स्टेटमेंट्स देखना है, मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी है, उसको समझना है कि वो जो बोल रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है ना। तभी आपको ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज मिल पाएगी। दूसरी जो ग्रोथ की मेथडोलॉजी मैं यूज करता हूँ वो यही है कि मैं सेक्टर ऐसे ही कैच करता हूँ, इनिशियल तो मैं ऐसे ही कैच करता हूँ। उसके बाद मैं इनमें टर्म लगा देता हूँ कि भाई मेरे को 500 करोड़ से ऊपर की कंपनी देखनी है, और उसमें देखना है। अब मान लो 500 करोड़ वाली कंपनी बोलती है मैं तो 50% से ग्रो करूंगा, और अल्ट्राटेक बोलता है मैं तो 20% से ग्रो करूंगा, तो मेरे लिए तो 500 करोड़ वाली ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। बस छोटी कंपनियों में एक इशू वो आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो पॉइंट है वो इंडिविजुअल बेसिस पे है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके लिए कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है और मेरे लिए क्या हो सकती है। वो डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो अपना पर्सनल टेक है, तो वो आपको अपने हिसाब से ही करना है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को जब हमको देखना है ना, तो इनिशियल हमको सेक्टर से करना है, उसके बाद फिर हम कंपनी एनालिसिस पे जाते हैं। ठीक है, अब कंपनी एनालिसिस पे हम जाते हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना है, जैसे हम सीमेंट तो अभी नहीं लेते हैं। सीमेंट अभी एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप जब सेक्टर को पकड़ेंगे ना, तो आपको सबसे पहले क्या सेक्टर के मॉडल्स पकड़ में आएंगे। और सेक्टर के मॉडल का पकड़ने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सीमेंट एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना। और सीमेंट, जैसे हम सीमेंट इंडस्ट्री की ही बात करते हैं एज अ होल, चलो एक एक इंडस्ट्री हम सीमेंट पकड़ते हैं, एक इंडस्ट्री हम वायर्स एंड केबल्स पकड़ते हैं। दो इंडस्ट्री के बारे में हम आज बात करते हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या इंडस्ट्री को पकड़ना है, इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या। इंडस्ट्री
जैसे हम सीमेंट की बात करेंगे तो वो कमोडिटी, एज ए कमोडिटी मानी जाती है, पता है आपको। और ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि हमको इंडस्ट्री के जो रिजल्ट्स है ना इसके सीमेंट के, तो वो सबका बीटा एक ही होता है। मतलब अगर अल्ट्राटेक चलेगी और छोटी कंपनी चलेगी ना, तो रिटर्न वो मोर और लेस सेम देगी। क्योंकि क्या है कि जो ग्लोबल लेवल पे सीमेंट इंडस्ट्री जो बिल्डअप है ना, वो क्या है कि सीमेंट इंडस्ट्री हर एक देश में सिर्फ तीन ही प्लेयर्स होते हैं बड़े, जो डेवलप्ड नेशन है। वहां पे सीमेंट के सिर्फ तीन ही प्लेयर्स होते हैं और वही प्लेयर्स पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखते हैं। इंडिया में अभी क्या है, प्लेयर तीन ही है। अल्ट्राटेक है, इसके बाद अभी अडानी ने पूरा अपना ये एक्वायर कर लिया है, अंबुजा एंड एक और कंपनी जो है वो। एंड तीसरे नंबर पे हमारी आती है बहुत अच्छा सा नाम है उसका, एक कंपनी और है। तो मतलब तीन कंपनीज है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बड़ी कैसे हुई? एक्चुअली क्या है, मार्केट शेयर मार्केट कैप तो एक अपना पॉइंट है ही है, पर सीमेंट इंडस्ट्री में हमको क्या देखना पड़ता है कि इनके पास लाइमस्टोन की माइंस होती है। ठीक है, तो आप मैं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब आपको अगर ग्रोथ वाली कंपनीज पकड़नी है ना, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, कोई भी सेक्टर पकड़ो, उसकी वैल्यू चेन को पकड़ो। ठीक है, वैल्यू चेन समझने के लिए दो तरीके हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोज मिल जाएंगे, आप सेक्टर टू सेक्टर वैल्यू चेन पकड़ो, उसमें से आप समझो कि कौन सा सेक्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। और उस वो अगर ग्रोथ वाले फेज में है तो बहुत ही बढ़िया। तो आपको क्या करना है कि वैल्यू चेन समझनी है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ लाइमस्टोन की माइंस, इसमें एक अपने आप में एक अपना सीमेंट सेक्टर में मायना रखती है। तो सबसे ज्यादा माइंस अल्ट्राटेक के पास है, उसके बाद अंबुजा। तो अंबुजा को अडानी ने कहा, तो एक तरह से अडानी के पास है। देन उसके बाद एक थर्ड नंबर पे एक और आती है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो छोटे प्लेयर्स है, जैसे माने उदयपुर सीमेंट हो गया, सागर सीमेंट हो गया, छोटी 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 छोटी, तो इनको क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अक्वायर करते रहते हैं। तो उनकी लाइमस्टोन की माइंस को भी अपने कैपेसिटी में एडिशन करते रहते हैं। और ये एट द एंड जो इस सेक्टर का एंड है ना, आज नहीं, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब हमारा नेशन एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, ये सारी छोटी कंपनियों को अक्वायर कर लेंगे। तो हमको क्या है कि जो छोटी कंपनी है ना, उसमें हमको हमको अपॉर्चुनिटी क्या है, सीमेंट सेक्टर की अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि भाई देखो, जो रिटर्न आएगा ना, मतलब रिटर्न का मतलब मैं बोल रहा हूँ जो क्वार्टरली रिजल्ट बेस पे जो रिटर्न आएगा ना, उन सबका तो बीटा सेम रहना है। तो आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करो, बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करो, जो भी ये लोग सेल कर रहे हैं, जो भी मार्जिन रख रहे हैं, वो उसमें रिजल्ट सेम आने हैं, रिटर्न आपको सेम आने हैं। बस बात ये है कि छोटी कंपनी जिसके पास लाइमस्टोन की माइन है, ठीक है, और अभी उसकी वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है, पर उसका आगे एक्विजिशन होने वाला है। जब भी एक्विजिशन की न्यूज आएगी ना, वो स्टॉक फट जाएगा एकदम, मतलब डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो हमारे को छोटी सीमेंट कंपनीज में फायदा ये है कि हमको उनकी लाइमस्टोन की माइंस देखनी है, और जब बड़े प्लेयर्स उनको एक्वायर करने आएंगे तो आपको वैल्यू अनलॉक हो जाएगा। अदरवाइज जो बेसिक रिटर्न आना है सीमेंट इंडस्ट्री का, वो तो आता ही रहेगा। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब वैल्यू, मतलब ग्रोथ इन्वेस्टर बनने के लिए पहले आपको वैल्यू, मतलब पूरी वैल्यू चेन कैच करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसको देखें, मतलब हर एक कंपनी को वन ऑन वन आप देखें, तो इट विल बी मतलब मच मोर फ्रूटफुल। इसके बाद हम बात करते हैं वायर्स एंड केबल्स की। एंड वायर्स एंड केबल्स मेरे को पसंद क्यों है, उसका रीज़न है कि हमने इंडस्ट्री के लीडर पॉलीकैब को देखा। ठीक है, अब आप पॉलीकैब का रिजल्ट देखें। पॉलीकैब का रिजल्ट, पॉलीकैब पिछले 2 साल से 27% और 24%। आप सोचें कितना बड़ा बेस है पॉलीकैब का, 1,08 करोड़, 1,08,000 करोड़ का आसपास का बेस है। और उसके बाद भी ये हर साल 27%, 24% से ग्रो कर रहा है। प्लस प्लस आप इसके अंदर देखेंगे तो जो एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि इसके अंदर है ना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है। तो क्या होता है ना, आप समझिए, बहुत बेसिक सी बात है। आज मान लो आपके सीए का ऑफिस है, ठीक है, और आपके सीए के ऑफिस को आपको ग्रो करना है, तो आपको कैपेसिटी, मतलब आपको दूसरी जगह ब्रांच खोलनी पड़ेगी। अब आप मान लो 10 ब्रांच खोलते हो, तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड दिख रही होगी, जब तो आप 10 ब्रांच खोलोगे। आप ऐसे फ्री में तो खोलोगे नहीं कि लॉस मेकिंग करने के लिए। तो इस पूरे सेक्टर में डिमांड है। आप कोई भी वायर्स एंड केबल्स की कोई भी कंपनी को जब रिसर्च करेंगे, है ना, जब एक बार वायर्स एंड केबल्स खोला तो देखो यहाँ पे साइड में सबके नाम आ जाते हैं, पॉलीकैब, केईआई, आरआर केबल, ठीक है, फिनोलेक्स, यूनिवर्सल, डायनामिक, अद्वैत एनर्जी। तो आप देखेंगे कि ये जो भी सारी कंपनीज है ना, सभी कैपेसिटी एक्सपेंशन में जा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट हो गया, जब आप रिसर्च करने बैठे किसी सेक्टर का, आपको दिखा कि आपको हर एक कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो उससे आपको एक चीज ये कैच हो जाएगी कि यार इस पूरे सेक्टर में एक टेलविंड है।
तो जब टेलविंड मिलेगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मेरे को इस सेक्टर के अंदर पैसा लगाना चाहिए। ठीक है। अब जब इतना बड़ा प्लेयर आपको इतने मतलब 25-26% से ग्रो करके दे रहा है ईयर ऑन ईयर, तो आप देखें कि छोटे प्लेयर्स को भी फिर आप एनालाइज करना चालू करें। तो आपको मतलब कहाँ से देखना है। और एक दूसरी बात और, ये तो पास्ट का स्टेटमेंट हो गया, फ्यूचर का स्टेटमेंट भी हमको एक बार देखना है ना। तो आपने जैसे ट्रांसक्रिप्ट खोली, आई होप ट्रांसक्रिप्ट सबको दिख रही है। हेलो। सर विजिबल है। हम्म, ठीक है, देखें। ये रिजल्ट में हर चीज बताते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून, वी आर प्लीज टू रिपोर्ट दैट आर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो बाय 26% YoY, और अब डेटा ग्रोज बाय 47% YoY, है ना। तो आप देखें कितना कितना मतलब अ, अच्छा रिजल्ट आया है ना। ठीक है। अच्छा, ये टैरिफ वगैरह हर चीज़ बताते हैं ना, कि आपकी यूएस जियोग्राफिक में टैरिफ का क्या इशू है। ठीक है। और टैरिफ की भी पूरी बात करते हैं, तो आप उसको भी देखें कि ना इन्होंने हर चीज़ बताई है कि हमारे ऊपर अगर इतने परसेंट इन्होंने ड्यूटी लगाई है, तो चाइना के ऊपर हमसे ज़्यादा ड्यूटी लगाई है ना। और अभी इंडिया पे 10% ही है। ठीक है। तो बाकी सब पे ज़्यादा है, तो वैसे भी हम वेल पोजिशन्ड हैं। तो आपको चीज़ें यहाँ से समझ में आएगी कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इंडस्ट्री का टॉप प्लेयर जब बोलेगा ना कि पूरी इंडस्ट्री में क्या सीन चल रहा है, तो आपको कैच हो जाएगा कि यार ये इंडस्ट्री में अभी कितना दम बच रहा है। क्योंकि अभी ये ग्रोथ स्लो हो नहीं रही है, इसके अंदर ग्रोथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये और आगे भी एक्सपैंड कर रहे हैं, प्लस कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। मैं फिलहाल क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम लोग मैं ये नोट्स सिर्फ उसी को पढ़ना है जो पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ चुका हो, है ना। ये कॉन कॉल में 3 चीजें दी होती है: ट्रांसक्रिप्ट, नोट, पीपीटी एंड रिकॉर्डिंग। 4 चीजें दी होती है। तो ट्रांसक्रिप्ट पूरी प्रॉपर जो क्वेश्चन आंसरिंग है वो बताता है। नोट्स इसका एआई जनरेटेड फॉर्म है, इसका शॉर्टकट बताता है। लेकिन ये किसके लिए काम का है? जो ये पढ़ चुका हो। मतलब आपने अगर इस क्वार्टर की पढ़ ली, तो अगले क्वार्टर आप नोट्स पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अगर ये नहीं पढ़ के डायरेक्ट नोट्स पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि क्या है कि मैनेजमेंट की टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोन कभी भी नोट्स में नहीं आती है, टोन हमेशा ट्रांसक्रिप्ट में आती है। तो ट्रांसक्रिप्ट ही पढ़ना है। पीपीटी भी एक इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमको है ना बहुत सारी चीजें है ना वहाँ पे नहीं मिलती है, बट यहाँ पे मिलती है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको ट्रांसक्रिप्ट में नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे आपको प्रॉपरली मिलेगी कि ये लोग क्या मतलब किस तरह की ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। कुछ डेटा हमको यहाँ से भी मिलता है। और रिकॉर्डिंग तो ऑडियो होती है, अगर किसी को सुनना हो तो, मतलब दैट मीन्स। नाउ हम वायर्स एंड केबल्स की बात करते हैं। नाउ हम वी आर गोइंग टू नोट्स। नोट्स। ठीक है। देखो, हर चीज एक्चुअली क्या है, जब आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करोगे ना, आपको हर चीज लिखनी है। देखे, फाइनेंशियल 25 ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर है 26-27%, केबल क्लोजर टू 30%, वायर्स अर्ली 20s गेन एट्रीब्यूट टू कैपेसिटी एसटीयूज अप्रूवल्स। ठीक है। अब केबल 70 से 74% है इनकी, मतलब टोटल रेवेन्यू के अंदर। और जब आप इसको थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो केबल है ना, उसमें हमेशा मार्जिन ज्यादा होता है, और वायर्स में हमेशा मार्जिन कम होता है। तो आप जब बहुत सारी कंपनियां एनालाइज करेंगे, मान लो आपको किसी कंपनी की कॉन कॉल नहीं मिल रही है, सिर्फ रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन उस रिजल्ट के अंदर मार्जिन आपको दिख रहा है कि ओपीएम 3% भी मैनेज कर रखा है उन लोगों ने, है ना। और जबकि आप देखेंगे कि इंडस्ट्री का जो लीडर है पॉलीकैब, उसका मार्जिन देखेंगे आप लोग, तो आप यहाँ पे मार्जिन देखेंगे 14% का मार्जिन है। ठीक है। आप किसी कंपनी को देखेंगे, वहां 3% का मार्जिन दिखेगा। तो आपको ये एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करनी है कि वो मतलब वायर सबसे ज्यादा बेचते हैं, वो केबल नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि वायर में मार्जिन कम है और केबल में मार्जिन ज्यादा है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको क्या है कि पूरी कंपनी, पूरे सेक्टर को कैच करने में इंपॉर्टेंट है। एक प्रोडक्ट मिक्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब आपको पूरा इंडस्ट्री एकदम कैच हो जाएगी अच्छे से। इसके बाद देखें, ये देखें प्रोजेक्ट स्प्रिंग। अब देखो, इन्होंने कैपेक्स के बारे में मल्टी ईयर रोड मैप फोकसिंग ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन 6,000 to 8,000 crore कैपेक्स ओवर 5 years, प्रीम्यूनिमाइजेशन, मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड एफएमईजी स्केल अप। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी का इन्होंने पूरा बताया हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्राइसिंग एंड मार्जिन। ठीक है। मार्जिन गाइडेंस। देखो,
इन्होंने बोला है मार्जिन यहीं पे रहने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया है, हमारे थोड़े से जो अभी 14.7 का मार्जिन आ रहा है थोड़ा कम होगा, रीजन बीइंग कि हम कैपेक्स कर रहे हैं, तो कैपेक्स की वजह से हो सकता है मार्जिन थोड़ा सा कम हो, तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। रिस्क इन्होंने बताई है, की नंबर्स इन्होंने बताए हैं, ठीक है। देखें, कंक्लूजन, मैनेजमेंट टोन एंड आउटलुक, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज हाईली कॉन्फिडेंट ऑन सस्टेनिंग ग्रोथ मोमेंटम, सेटिंग स्ट्रॉन्ग मैक्रो टेलविंड्स, रोबस्ट ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट स्प्रिंट्स, ठीक है। और नो साइन ऑफ स्लो डाउन। आप समझें, मार्केट लीडर जब ये बात बोल रहा है ना, तो मतलब इंडस्ट्री में दम है। और यहीं से ही हमको कैच करना होता है कि हमको एक ग्रोथ का सेक्टर मिल गया है, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट एंड इन्वेस्टिंग इन इट, है ना। तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मेरे हिसाब से आपको ग्रोथ ग्रोथ वाले सेक्टर्स को इसी तरह से एनालाइज करना। अब हम वायर्स एंड केबल्स में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, तो हमको और क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे अब इसमें एक सेकंड नंबर की कंपनी के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। इसका मार्जिन 10% है ना। और ये देखिए एक्सपोर्ट करती है, जबकि पॉलीकैब का है ना डोमेस्टिक मार्केट बड़ा है, एक्सपोर्ट मार्केट इतना बड़ा नहीं है। तो के इंडस्ट्री के साथ जो प्रॉब्लम है ना, जबकि आप कभी भी कहीं भी देखेंगे जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं ना, उनके मार्जिन हमेशा ज़्यादा होते हैं। पर अगर कोई कंपनी जिसके मार्जिन अपने मार्केट लीडर से कम है ना, और एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी, तो वो कंपनीज बहुत बड़ा रिटर्न कभी भी नहीं बना के देगी। रिटर्न देगी जो उसका वैल्यूएशन है, अगर वो एग्जीक्यूशन चल रहा है तो ठीक है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमको ये देखना है कि भाई एक्सपोर्ट भी तुम कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, मतलब श्रिंक मतलब तुम्हारे मार्जिन उतने ही नहीं है जितने मार्केट लीडर के, तो मार्केट लीडर के इक्वलेंट तो कम से कम मार्जिन हो। तो आप ये सब चीज़ें हमको पॉइंट्स को नोट करना होता है, ठीक है। देखो इन्होंने QIP करा है कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। अब देखो टॉप प्लेयर ने भी एक्सपेंशन के लिए बोला हुआ है, सेकंड नंबर वाला प्लेयर भी एक्सपेंशन कर रहा है। इसका मतलब हमको क्या समझना है कि मार्केट में डिमांड है, तभी पूरा का पूरा इंडस्ट्री आपका एक्सपेंशन के अंदर जा रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं, इसी के बाद एक और कंपनी RR केबल, ठीक है। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और कॉन कॉल से अच्छा कुछ भी नहीं, कॉन कॉल मतलब कॉन कॉल पढ़ के ही आपको समझ में पड़ जाएगा कि किसी कंपनी का या किसी इंडस्ट्री का क्या आउटलुक आ रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ कंपनीज के लिए देखें, रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू बढ़ा है 13% से। आप 13,000 करोड़ की बेस पे 13% से ग्रो कर रहे हो, जबकि आपका मार्केट लीडर 25-26% से ग्रो कर रहा है। तो ऐसी कंपनियों में तो वैसे ही मतलब इतना दम नहीं है, मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो, है ना। गाइडेंस क्या दे रहा है, 18% का, जबकि हमारा मार्केट लीडर कितना का गाइडेंस दे रहा था, 26% का। तो ये हमारी रैंकिंग में और नीचे हो जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का सिर्फ ये है कि ये भी कैपेक्स कर रहे हैं 50 से 75 करोड़ का, और ये 300 करोड़ का कैपेक्स का गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये इससे सिर्फ हमको एक इंडस्ट्री का या फिर मतलब इंडस्ट्री का आउटलुक पता चलता है कि इंडस्ट्री में डिमांड है। देखिए मार्जिन भी सिर्फ 7% है, तो इसका मतलब ये है कि वायर ज़्यादा बेचते होंगे, केबल्स कम बेचते होंगे, तो इसी वजह से। और इन्होंने शायद लिख कहीं पे नोट भी कराया हुआ है, ये देखें, वायर्स 70 से 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन केबल्स में, ओके। प्रोडक्ट मिक्स इसमें दिया हुआ नहीं है, रेवेन्यू मिक्स, एक सेकेंड, रेवेन्यू रेवेन्यू, हाँ देखें 70-30, तो वायर हैवी है ये कंपनी, जो कि हमने इनिशियल जब हमने इंडस्ट्री एनालिसिस किया होगा। अब मैं एक्चुअली क्या बहुत डिटेल में मैं जा नहीं पाया हूँ, वो बहुत सब कुछ होता है इंडस्ट्री कैसे एनालाइज करते हैं, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि वो अपन को इनिशियल में पता लग गया था कि अगर कोई वायर ज़्यादा बेचेगा तो उसको मार्जिन कम मिलेगा, तो वैसे ही हमको पता लग रहा है। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट में भी दिखता है, प्लस ये लोग बताते भी हैं कि भाई हम 70% वायर बेचते हैं, लो मार्जिन प्रोडक्ट ज़्यादा बेचते हैं, इसी वजह से इनका OPM भी कम रहता है, ठीक है।
इसके बाद हम आ जाते हैं, फिर अब क्या होता है ना, लोग डायरेक्टली आर केबल खरीदते हैं जस्ट बिकॉज पॉलीकैब ने अच्छा रिजल्ट दिया तो आर केबल। ऐसा नहीं होता। आपको पूरा समझना पड़ता है कि वो लोग क्या प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं, एक्चुअल में उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या रेवेन्यू का गाइडेंस 18% का गाइडेंस दे रहा है, पॉलीकैब 26-27% से ग्रो कर रहा है, तो क्यों आर केबल लेना। मतलब बात वो है, प्राइस को क्यों देखना जब आप वैल्यू को डिस्कवर डिस्कवर कर सकते हो थोड़ा सा नॉलेज लगा के। तो क्या इशू है इसमें। नाउ फिनोलेक्स की बात हम करते हैं, फिनोलेक्स केबल, इसके नोट्स भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, पूरी इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं एक बार, हाँ, तो हमको काफी क्लियर हो जाएगा। इसने 13% से ग्रो किया है अपने आप को। ठीक है, अब हमको एक ही चीज देखनी है, वो है फ्यूचर। फ्यूचर क्या बोल रहे हैं इन लोग। हम्म, देखो, प्रोडक्ट वर्सेस रिटेल में, रिटेल सेल्स हैव ड्रॉप्ड बाय 75 to 80% to 60% of वायर सेगमेंट इन लास्ट 2 क्वार्टर, रिप्लेस बाय लोअर मार्जिन प्रोडक्ट सेल्स। ओके, ये देखो किस तरह की, मतलब मैनेजमेंट एस्पायर्स फॉर सेगमेंट मार्जिन अराउंड 12% बट नोट्स दैट ओवर द लास्ट 2 क्वार्टर इट हैज ड्रॉप्ड, एक्सपेक्ट रिकवरी इन अ कपल ऑफ क्वार्टर। तो वो रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको इस बात पे मतलब समझ रहे हैं ना, आप एक बार में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। अगर रिकवरी ये बोल दिया इन्होंने कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब आप अगला क्वार्टर देखें, अगर एक्चुअल में रिकवरी होती है ना तो ही इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये देखें, कैपेसिटी एडिशन इनको नहीं करना है। ठीक है, यूटिलाइजेशन इनका इंप्रूव हुआ है, अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट पे ही काम करते हैं तो 30 से 40% फ्यूचर ग्रोथ दे सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी ये कैपेक्स का गाइडेंस दे रहे हैं 300 करोड़ का। मतलब ओवरऑल आपको ये सब चीजें देख के ये लग रहा होगा कि यार, मतलब वो मजा नहीं है जो पॉलीकैब में हमने पढ़ा ना। पॉलीकैब जो ग्रोथ की बात कर रहा है, पॉलीकैब जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहा है क्योंकि डिमांड है, जबकि ये बोल रहे हैं कि कम हमारे करंट इन्वेस्टमेंट से हमको 30-40% मिल सकता है, पर फिर भी कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो वो क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं देगा। आप जब पढ़ोगे ना तो आपको फील होएगा कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, ये तो मतलब ये बात, ये तो सिर्फ बातें बातें हो रही है, इसका एग्जीक्यूशन लग नहीं रहा। आपको करना है नोट डाउन तो नोट डाउन कर लो, लेकिन देखो मार्केट क्या फॉरवर्ड लुकिंग होता है। आपने ना प्राइस देखी होगी ना, तो आप देखो फिन, अभी हमने जितने की भी बात करी, देखो फिनोलेक्स की प्राइस मूव ही नहीं कर रही है। फिनोलेक्स की प्राइस मूव ही नहीं कर रही है, 1 साल से देखो स्टॉक यहीं पड़ा है। ना कोई गाइडेंस है, प्रॉपर गाइडेंस है, वो करंट यूटिलाइजेशन भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे प्राइस मूव करेगा। अब लोग प्राइस देख के बैठ जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, मतलब आपको रिटर्न नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, आप देखें इसकी जगह हम पॉलीगैप देखते हैं, है ना। अब आप पॉलीगैप देखो, पॉलीगैप देखो, अगर डिप भी आया, गाइडेंस वापस रिकवर हो गया, यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये क्या हुआ। ये 7,000 का 5,500 5,000 भाव हुआ, तो आपको क्या करना है और कैसे देखना है इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। बट देखें, आप यहाँ पे 5,000 भी आ गया तो वापस 7,500 हो गया, क्यों, क्योंकि है पोटेंशियल, है, कर रहा है ग्रो, कर रहा है एग्जीक्यूट उसका जो मैनेजमेंट है। हाँ, ओके। सो पॉलीकैब के बाद हम बात करते हैं सेकंड की इंडस्ट्री जो हमने देखा। हमने 4 स्टॉक्स देखे हैं ना, अभी सबकी एक बार प्राइस डिस्कवरी भी देख लेते हैं। ठीक है, कि ये इंडस्ट्री यहाँ से मूव किया है, लेकिन मार्केट लीडर के इक्विवेलेंट इसने रिटर्न नहीं दिया है। ये 2500 का लो था, ये 4,000 रुपये तक आया है। ठीक है, बट मतलब मेरे को पर्सनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हुए भी कम ओपीएम, कोई मतलब मार्केट लीडर से कम का टारगेट, तो आई डोंट फील कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक मिनिमम जो इसका वैल्यूएशन है उतना मेंटेन करके चल रहा है बस। बट इसको आप वैसा नहीं कह सकते, अगर एक भी खराब क्वार्टर आ गया ना तो इसका प्राइस एकदम सीधा 2,500 रुपये आ जाएगा। तो वैसा अपन को नहीं करना है। आर केबल की हम बात करते हैं। देखें, वो अपने आप दिखता है, वायर्स में ही ये लोग करते हैं, केबल्स में इतना करते नहीं है। मार्जिन इतने हैं नहीं, गाइडेंस इतना कोई खास नहीं है, जो लीडर है वो बहुत आगे है इनसे। तो हमने ना ये पूरा एक इंडस्ट्री को, मतलब पूरा तो नहीं बट हाँ, हमने जो टॉप 10,000 करोड़ से ऊपर की जो मार्केट कैप के प्लेयर्स थे उनको हमने समझा, और हमको यही बात समझ में आई कि हमको है ना, जो सबसे ज्यादा अच्छा गाइडेंस दे रहा है और एग्जीक्यूट भी कर रहा है साथ के साथ, उसी के साथ बैठना है। अभी इसमें और भी प्लेयर्स हैं, और भी प्लेयर्स हैं जिससे हो सकता है पॉलीगैप से ज्यादा ग्रोथ देने वाले हों,
है ना। और हमको रीड करना है, एक्चुअली एक एक को रीड करना है, और उनके रिजल्ट्स को भी ट्रैक करना है। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है, अदरवाइज पॉली कैप अच्छा है, 25-26% से अगर कोई लार्ज कैप ग्रो करता है तो वो मार्केट के रिटर्न्स को तो बीट करने ही वाला है। ये तो बहुत हाईली प्रोबेबल है। ठीक है। और अभी हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज की हम बात करते हैं, वो तो हमने तीनों चीजें को क्लियर कर लिया है। हमने एक टर्न अराउंड स्टोरी देख ली है, टर्न अराउंड स्टोरी को कैसे देखना है वो हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया है। इसके बाद हमने ऑर्डर बुक रिलेटेड स्टॉक्स देख लिए जिनका एक निश होता है, अपना कुछ खुद के पर्सनल अप्रूवल्स होते हैं, जिसके बारे में हमने एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में बात किया। प्लस मैं एक नाम और लूंगा, आजाद इंजीनियरिंग करके कंपनी है, वो भी डीआरडीओ से अप्रूव्ड एक कंपनी है। बट उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं साथ के साथ। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट आपको रीड जरूर करना चाहिए। रीड करो, एक बार देखो कि आजाद इंजीनियरिंग में क्या है और क्या डेवलपमेंट है, और यूएस में जो अभी चीजें बिगड़ रही है उससे आजाद इंजीनियरिंग पे कोई इफेक्ट है क्या। एक्चुअली उस पर थोड़ा इफेक्ट है, जो मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मार्केट सही हो और मार्केट उसमें रिटर्न दे दे, बट आपको एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। आपको खुद के एक अपना एक बेस जरूर क्रिएट करना चाहिए। देन अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि कोई स्टॉक 7500 रुपये से है और मानो 5000 रुपये हो जाता है, तो फिर क्या किया जाए। और ये जो प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन है, इसमें कैसे बिलीव किया जाए कि हमको इसमें बैठे ही रहना है। तो इसका सबसे सिंपल फंडा ये है कि अगर आपको आपके स्टॉक पे आपको बिलीव है, आप पास्ट एग्जीक्यूशन को देखते आ रहे हैं, है ना, और अगर आपका स्टॉक नीचे आता है तो ये आपको एक एक्यूमुलेशन का मूव देता है। ठीक है, आपको पता है, आपने रिजल्ट ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी अभी कि हमको ऑर्डर बुक के हिसाब से, अब ये इसमें तो ऑर्डर बुक कहीं भी नहीं है ना, हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन हमारे पास गाइडेंस तो है। भाई ये लोग बोल रहे हैं कि हम 26% से ग्रो करेंगे, तो 26% से आप निकाल के देख लो उसका P&L। आप अपने आप P&L पे यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद आप इसका पैट निकालेंगे, पैट से वैल्यूशन कर लो। अगर आपको लगता है कि 5,500 से 7,000 का हो तो आना ही आना है, तो आप उसको और खरीदो वहां पे नीचे जाने के बाद। ठीक है। तो आपको क्या है ना, जो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है ना, उससे आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी कि यार मेरे को कैसे करना है, क्या करना है। एंड देन आप इस भाव के करेक्शन पे आपको खुशी होगी, गम नहीं होगा। मेरे तो बहुत स्टॉक है जो मैं चाहता हूँ थोड़ा गिरे, बट वो गिरते ही नहीं है। वो चीजें ऐसे मूव करती है कि ग्रोथ आ रही है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो हमको तो ऊपर ऐड करते जाना पड़ता है, ऊपर ऐड करते जाना पड़ता है, और एग्जीक्यूशन अच्छा आ रहा है तो ऐड करते जाओ। और जैसे ही कोई भी स्टॉक की ग्रोथ स्लो होगी ना, तो वैसे आपको एग्जिट भी करना है। अच्छा, जैसे अब एंट्री इंपॉर्टेंट है, एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा एग्जिट सिनेरियोज के बारे में बात करने के लिए। मेरे पास दो सिनेरियोज है, दो टेक्निक्स है। एक टेक्निकल एनालिसिस, मतलब चार्ट के बेसिस पे भी मैं एग्जिट्स लेता हूँ, और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे भी एग्जिट लेता हूँ। तो मेरा प्राइमरी फोकस फंडामेंटल एनालिसिस रहता है। इसका रीजन ये है कि मैं क्वार्टर के रिजल्ट और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बिना कभी एग्जिट नहीं लेता हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। पर कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, जैसे एक सर ने जेंसोल इंजीनियरिंग का नाम लिया था यहाँ पे, है ना। तो उसमें क्या हुआ था ना, कि जो ऑर्डर बुक की हम बात कर रहे हैं, तो वो लोग हर कॉन कॉल, हर मतलब उसमें इतना हवा करते थे कि हमारे पास 1,000 करोड़ की 1,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है, 1,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और उनकी मार्केट कैप 400-500 करोड़ ऐसा कुछ ही थी, और वो बहुत मतलब हाइप कर दिया उनका स्टॉक। उन्होंने मतलब मल्टी मल्टी टाइम्स बढ़ा दिया। बट जब आप रिजल्ट पढ़ोगे ना, तो रिजल्ट ही मतलब ऐसे बेकार रिजल्ट आ रहा है। और जैसे ही रिजल्ट आ रहा है ना, वैसे ही मैनेजमेंट का प्रमोटर टीवी पे आ जाता है, टीवी पे आके बोलता है कि नहीं नहीं, हमारे क्या हुआ, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हम अगले क्वार्टर तो रिजल्ट आएगा सही, बिल्कुल तगड़ी ऑर्डर बुक है, यूं यूं। अब क्या होता है कि एज ए इन्वेस्टर आपको क्या है कि प्रमोटर बोल रहा है, उसको बिलीव करना है, लेकिन इतना भी बिलीव नहीं करना है कि रिजल्ट जब आपके नंबर्स में नहीं दिख रहा है और वो टीवी पे आके बोल रहा है, यू आर लाइक क्या रहा है, नहीं नहीं ठीक है अगले क्वार्टर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर उसका उसने बोल दिया है कि हम मतलब आपको एग्जीक्यूशन के नंबर्स में नहीं दिखे हैं, तो देन एग्जिट कर लेना ही सबसे बेस्ट सिनेरियो रहता है। थोड़ा लॉस होगा, बट ठीक है, इट्स फाइन। कभी भी अलोकेशन इतना ज्यादा मत करो कि उस लॉस को आप बियर ही नहीं कर पाओ। एंड सेकेंडली, जब जेंसोल इंजीनियरिंग का जब फ्रॉड खुला कि भाई वो ऑर्डर बुक जो थी वो उनकी पूरी फ्रॉडुलेंट थी, फ्रॉडुलेंटली रिपोर्ट किया था, पैसे का मिस एग्जीक्यूशन किया उन लोगों ने, देन वो स्टॉक 800 रुपये, 1,000 रुपये से आई गेस अभी 100, 60, 70 रुपये का भाव आ गया है। तो ऐसे में हमको नहीं फंसना है। अब उसका एक सबसे अच्छा क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ आपको। क्या सबको चार्ट दिख रहा है क्या? ये सर फिजिकल है। यस, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। जो मेरी मेरी चार्ट वाली टेक्निक है ना,
तो मैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अम, हम जेंसोल ही खोल लेते हैं। देखो 35 रुपए का भाव है आज जेंसोल का, और यहाँ पे क्या हाइप थी इस स्टॉक की, 400 रुपए से अब 1300 रुपए। आप मैनेजमेंट कमेंट्री उठा के देखना, दे आर लाइक हमको इतना ऑर्डर मिल रहा है, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। और ये इतना हाइप हुआ था स्टॉक, एंड देन जब पता चला सब कुछ फ्रॉड था, फेक था, प्रमोटर्स ने पूरा पैसा इधर उधर कर दिया, देन लोगों को एग्जिट का क्राइटेरिया नहीं मिला। बट हमारे पास है एग्जिट का क्राइटेरिया। इससे पहले कि जेंसोल गिरता हम लोग तो निकल ही जाते एनी हाउ। तो हमको क्या करना है, सिंपल मूविंग एवरेज करके एक वो होता है, ठीक है। और हमको सिंपल मूविंग एवरेज को कर लेना है 50, ठीक है। और हमको इसको लगाना है वीकली चार्ट पे हमेशा, डेली पे नहीं लगाना है, हमको लगाना है वीकली पे। वीकली पे जिस भी वीक में ये क्लोजिंग देगा नीचे, इस लाइन के नीचे, हमको, हम कितने भी अच्छे एनालिस्ट हों, हमको कोशिश करना है कि हमको यहाँ पे एग्जिट हो लेना है। अगर ये लाइन के ऊपर वापस आएगा ना, तो हम वापस बाय कर लेंगे। अगर एग्जीक्यूशन आएगा तो हम वापस बाय कर लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट हमको इस लाइन के नीचे अगर वीकली क्लोज दे दिया है अगर किसी स्टॉक ने, वी हैव टू एग्जिट इट। दिस इज द बेस्ट वे, आई फील दिस इज अ बेस्ट वे। कई बार क्या होता है, न्यूज बहुत बाद में लीक होती है, प्राइस बहुत पहले रिएक्ट कर देता है। तो क्या होता है, प्राइस रिएक्ट करे और हम अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी जानते हैं, बट अगर हम वीकली पे 50 का सिंपल मूविंग एवरेज लगाएं और यहाँ पे हम एग्जिट ले लें, तो हम इतने बड़े कार्नेज से हमारे इसमें एक पोर्टफोलियो को चीज और बचा सकते पूछना चाह रहा हूँ सर इसमें, अरुण सर, ये जो हैं। जी जी। एवरेज लिया है आपने, मूविंग एवरेज, ये तो आपने लास्ट जो पीरियड है जिसमें ये डाउनफॉल आया है उसका लिया है ना? अपन को कैसे पता चलेगा? पुराना पुराना एवरेज नहीं लेंगे ना अपन तो? नहीं सर, ये एवरेज ऑटोमेटिक कैच करता है। ये यहाँ का नहीं है। हम्म, ये एवरेज यहाँ से, ये जो स्टार्टिंग हुई ना अच्छा इस स्टॉक की, यहाँ से 50 वीक का है अच्छा, एक्चुअली। ठीक है। ये आगे की प्राइस का है, आगे की अच्छा 50 वीक के प्राइस का है। तो जैसे, तो हमको है ना इसके नीचे पे कोई भी इन्वेस्टमेंट, मतलब हम कुछ कर भी रहे हैं ना, तो हमको कोशिश करनी है कि हमको इसके नीचे पे नहीं बैठना है। इसके बाद जब अगर मान लो जेंसल में दम होती, मान लो यहाँ तक जाता, और मान लो मैनेजमेंट इतना बुरा नहीं होता और एक्चुअल में एग्जीक्यूशन आता, तो ये कभी कभी इसके ऊपर भी आता, और इसके ऊपर आता, और आपको आपके रिजल्ट्स भी दिख रहे होते कि भाई रिजल्ट अच्छे हैं क्या। तो आपने जब फंडामेंटल एनालिसिस को भी इसके साथ जोड़ लिया, वापस से आप री एंट्री कर लेते, क्या प्रॉब्लम थी आपका? कम से कम यहाँ पे 880 का 1000 में मिल जाता, क्या फर्क पड़ता? ठीक है ना, पर आप सेफ तो थे। अगर अगर चीजें बिगड़ती चली गई तो फिर आप कम से कम, मतलब अपने आप को बचाना इज मोर इम्पोर्टेंट ना। एग्जिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंट्री तो ठीक है, एंट्री तो बाय लक कई बार बहुत सारी चीजों में हो जाती है, बट एग्जिट, एग्जिट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा टेक्निकल का बेस होता है। प्लस कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो, मतलब जिनका मैनेजमेंट में मेरे को ट्रस्ट होता है, तो मैं क्वार्टर के रिजल्ट तक तो वेट करता ही हूँ, उसके बाद ही मैं उनमें से एग्जिट लेता हूँ। तो ये चीजें हैं फिलहाल। मेरे हिसाब रैप अप कर सकते हैं हम सेशन को। मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया बता दिए, बहुत सारे बचे हैं, बट विल डू इट इन सम टाइम नेक्स्ट। तो दीपक जी ना, वो दीपक जी। क्वेश्चन आंसर ले ओके। सकते हैं, या हाँ कोई रेज कर दे हाँ, तो उनसे, रेज हैंड कर दे उनसे पूछ ले, या कोई चेक बॉक्स में आया तो। हाँ, चैट राइट सर, बुक्स में मैं राइट। देख लेता हूँ। तो बस एक एक बार सेकंड सर, में क्वेरीज। 50 हाँ तो आपने एग्जिट वाला पॉइंट बताया, किसी को रिपीट एक बार समझना है, तो इसको जल्दी से एक बार आप वो रिपीट वाली स्ट्रेटजी, एग्जिट स्ट्रेटजी को एक बार रिपीट कर दीजिए। एग्जिट स्ट्रेटेजीज को, तो एग्जिट स्ट्रेटेजी आपको इंडिकेटर्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे SMA लिखना है, तो ये मूविंग एवरेज सिंपल करके लिखा आता है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे चार्ट पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड होने के बाद यहाँ पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी 50 वैसे लिखा हुआ है, कई बार हो सकता है नहीं लिखा है। यहाँ पे आपको लेंथ को 50 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 20, 100, 200 कुछ भी लिख सकते हो आप, पर यहाँ हमको 50 लिखना है, ठीक है। ये जो चार्ट है, इसको यहाँ पे W लिखा हुआ है, तो यहाँ पे W पे क्लिक करके देन यू हैव टू गो 1 वीक।
और ये लाइन ऑटो ड्रॉ हो जाती है, ऑटो कैलकुलेटेड होती है ये लाइन, है ना। तो ये 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 जो हमारा प्राइस है ना, जब भी इस वीकली 50 वीकली एवरेज की क्लोजिंग के नीचे जिस वीक में आपका स्टॉक चला जाएगा ना, तो हमको यहाँ पे 873 रुपये पे इस पे एग्जिट कर लेना है, चाहे आपने यहाँ खरीदा हो, इट डजेंट मैटर। आप हमेशा ध्यान रखें, जब जब आप अपने लॉस को कंट्रोल करेंगे तब आप दूसरे स्टॉक्स के बड़े प्रॉफिट को बचा पाएंगे। अगर आपने कोई स्टॉक 10 टाइम्स वाला पकड़ लिया है, 5 टाइम्स वाला पकड़ लिया है, 2 टाइम्स वाला पकड़ लिया है, या जो भी रिटर्न आपने मार्केट में पकड़ लिया है, अगर आप ऐसे स्टॉक्स के लॉसेस को कवर, आप अपने आप को रोक लेंगे ना यहाँ पे, तो दूसरे स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक स्टॉक थोड़ी, जेंसोली थोड़ी बचा है, दुनिया में बहुत स्टॉक है, कोई बात नहीं, गया यहाँ पे, यहाँ मान लो यहाँ इन्वेस्ट किया था बातें सुन सुन के, तो कोई बात नहीं, गया 30% 40%, इट्स फाइन, ठीक है, बच गए ना आप, मतलब पूरा तो नहीं गया, 20 20 30% जो भी गया, ठीक है, इट्स फाइन, चलेगा। तो क्या होता है ना, लॉसेस को कवर करते हुए चलना है, तो हमको ये एग्जिट स्ट्रेटेजी का बहुत ध्यान रखना है। आई होप Right, sir. क्लियर हो गया वो सर को। I think it एंड is very clear. एक एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन हमारे बीच में था। वो क्वेश्चन था, हाउ डू यू सजेस्ट अबाउट टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक एंड इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक बेस्ड ऑन फुली इन्फॉर्म्ड डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एज पर द डिस्कशन टुडे। सर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि हम कोई भी तरह की लोन, लीवरेज या बाहर से पैसा लेके हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, किसी और का या हमारा खुद का। उसका रीज़न सर ये है कि क्या होता है, जब आपको एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी होती है इंटरेस्ट पे करने की, या आपके पास एक एक्स्ट्रा बोले कमिटमेंट होता है, तो ना तो आप कभी भी प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे, और ना ही कभी आप उतना पैसा बना पाएंगे जितना आप अपने खुद के पैसे का बना पाएंगे। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप कभी भी लेवरेज लेवरेज मतलब आपको कहीं से कोई बोल रहा है कि मेरे पास डब्बा खुलवा ले और मैं तेरे को ये स्टॉक अगर 100 रुपए का है और आप इतने में खोल लेंगे, मतलब इतने रुपए आपको लीवरेज मिल जाएगा, वो आपको नहीं करना है। प्लस लोन तो कभी नहीं लेना है स्टॉक मार्केट के लिए, कभी नहीं लेना है। खुद का पैसा लगाओ जितना है, अगर 1 लाख रुपए है, एक ही स्टॉक ले सकते हो, तो पूरे साल में, पूरे महीने में स्टडी करो, एक स्टॉक लो, उसमें बैठे रहो, उससे सीखो। अगर आगे आने वाले टाइम में 5 लाख रुपए सेविंग होती है तो उसको भी उस हिसाब से इन्वेस्ट करो, एक बार लर्न करो चीज़ों को, सीखना, और खुद के पैसे को लगाओ। बैंकिंग वैंकिंग ये सब, इन सब में मत पड़ो, मतलब बहुत 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 मतलब खराब हो जाएगा सी। एंड नाउ थैंक यू प्रिया जी फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। एंड ओला इलेक्ट्रिक फ्यूचर, सर हमने ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर ली है। ओला इलेक्ट्रिक में पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा सुधार है, ठीक है। अब वो उनकी जो क्वार्टरली सेल्स होती है गाड़ियों की, हमको उसको ट्रैक करना होगा। जो उसके पीर कंपटीटर हैं, जो कि है हमारा चेतक, है ना, टीवीएस, iQube एंड अदर जो भी है, अगर बाकी कंपनियां सेल अच्छा दे रही है अरुण प्लस सर, कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छा है, तो हमको अरुण सर, वही आपकी देखना है, वॉइस ओला नहीं। हेलो, हेलो, सर हेलो, आपकी स्क्रीन वॉइस चली गई। हेलो, हेलो, किसकी आप वॉइस पढ़ेगा। डिस्टर्ब कर रही है? अभी आ रही है क्या? हेलो, आपकी आ रही है? ओके। तो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में हमने सर बात थैंक कर ली है ना। अब यूनिकेम लैब, सर मैंने पढ़ा नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि केमिकल स्टॉक्स को रीड करने के लिए आपको बहुत इंसाइट चाहिए। अगर ये केमिकल की ही है तो लेबोरेटरी की कंपनी है। देखो, अगर मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से तो ये एग्जिट क्राइटेरिया के नीचे चल रहा है, चार्ट दिख रहा है ना सबको, एग्जिट क्राइटेरिया के नीचे चल रहा है, तो आई विल नॉट इन्वेस्ट इन इट। आई मे स्टडी, बट आई विल नॉट इन्वेस्ट इन इट अंटिल द प्राइस विल बी अबाउ 660। आई वॉन्ट इन्वेस्ट इन इट। ओके, फार्मा की कंपनी है। हाँ, तो सर फार्मा में बहुत सीन ये रहता है, फार्मा में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। फार्मा की कंपनी का सीन ये है कि आपको वो लोग किस मतलब किस कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, उस कंपोनेंट की मार्केट डिमांड क्या है, और उसके अप्रूवल्स। क्योंकि फार्मा की कंपनी के साथ क्या होता है कि एक ना यूएस के एफडीए के अप्रूवल्स होते हैं, प्लस यूके के अप्रूवल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं। वो अप्रूवल मिलने के बाद ही कंपनी के प्रोडक्शन की सेल हो पाती है। तो कंपनी ने अगर प्लांट खोल भी लिया ना, पर अगर उसका कंपोनेंट जो है वो अप्रूव ही नहीं हुआ, तो फिर वो फार्मा के मतलब उस कंपनी का कोई रिटर्न नहीं आएगा। तो क्या होता है, फार्मा की कंपनी को एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हमको अप्रूवल्स देखने होते हैं, और ये भी देखना होता है कि वो अप्रूवल आगे जाके वो कैंसिल नहीं हो रहे होंगे, कैंसिल हो जाता है तो भी वो सेल नहीं हो पाती, तो वो रिटर्न नहीं आ पाता है। तो एज ऑफ नाउ यूनिकैम हमारे एग्जिट क्राइटेरिया के नीचे, तो वी विल नॉट इन्वेस्ट।
अब इसके बाद सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी शायद अभी लिस्ट हुआ है ना? नहीं, ये भी हमारे एग्जिट क्राइटेरिया के नीचे चल रहा है, तो वी विल नॉट इन्वेस्ट इन इट एज ऑफ नाउ, बट हम इसको देख सकते हैं। आई गेस ये सेकेंड हैंड वाली कंपनी है ना? I think Customized yes, electric long solution for switch gears, wires and cable energy management involved in CM operated rotary switches viaducts of India. ओके, 21 का पी है। ग्रोथ, पिछली ग्रोथ तो अच्छी है, आगे क्या है? ये देखें, यूएस टैरिफ का इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, नी जर्क रिएक्शन इन कस्टमर बिहेवियर, सम प्रीपोनिंग सम डेफरिंग। तो इसी वजह से ये स्टॉक इतना पिटा हुआ है। मतलब इन लोगों का कस्टमर बेस होगा यूएस बेस्ड, तो इनको प्रोबेबल है, तो प्राइस अभी से ही बता रहा है। तो आप समझ रहे हैं, हम हमारे टेक्निकल बेस पे चलते हैं तो इसके नीचे हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। पर अगर टैरिफ की चीज़ें सुधरती है और चीज़ें, अब स्टॉक्स नहीं लेते हैं प्लीज़। right, sir. लेट्स क्लोज, है ना? आई Thank होप you. एवरीबडी हैव एंजॉयड इट। बाकी Definitely, sir, बाकी आप definitely. लोग पढ़ें, और हम लोग करते हैं फिर कभी, विल इन टच। यूट्यूब पे स्टॉक्स देखता के हूँ अलावा मैं। और कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग टू फंडामेंटल्स, हमने दो सेशन तो डेफिनेटली वो पूछे, उससे आई थिंक सभी को benefit मिलेगा। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा वो टफ हो जाता है वो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और जैसा कि अरुण जी बताया कि 5,000 स्टॉक मार्केट में, 5,000 में से मे बी कि आप 20 ट्रेड कर रहे होंगे, 30 ट्रेड कर रहे होंगे, तो वो भी आई थिंक बेस्ट वे है। हाँ वही, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको सेक्टोरियल टेलविंड को देखना है, वैसा। और जी पीपीटी आपकी आप शेयर कर दीजिए एक तो, हाँ यस सर, मैं है ना? मैं अभी भेजता हूँ। चैट चैट में ही आप शेयर कर दीजिए ताकि इजीली मेंबर्स तक पहुंच जाएगी। ओके। बिल्कुल। सेकंड आज चीज जो थोड़ा सा सब थोड़ा सा एडवांस सेशन था सर, आई होप कैच हुआ हो। मैंने सर काफी थोड़ा सा एडवांस। इंटरेस्टिंग था। वेरी हाँ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और कोई 1-to-1 भी क्वेश्चन थैंक पूछ जाता है, रेज हैंड का यूज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मे बी मैसेज में थोड़ा सा टाइप करने में बड़ा डिफिकल्ट हो तो आप रेज हैंड कर दीजिए। वैसे मैंने पीपीटी में से बहुत ज़्यादा कुछ एक्चुअल रीज़न बीइंग, पीपीटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि हम लोगों को समझा पाएं कि चीज़ें क्या हैं। यू। तो thank you so much, Arun Punitha, for your highly informative and insightful session. I'm sure all the participants have gained valuable knowledge, whether it is about to check the con call and fundamental analysis, especially order book analysis, and to search the new growth criteria. And very important for me, that is the exit criteria, because this is very important to find out the right timing of the entry and exit. So this is overall session is very helpful for us. तो अगर किसी की कोई क्वेरी पेंडिंग हो तो डेफिनेटली सर और हम लोग किसी भी मेंबर को अप्रोच करके अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकता है। हम सर तक डेफिनेटली आपकी क्वेरीज पहुंचाएंगे और आपका कुछ सोल्यूशन देंगे। थैंक यू वंस अगेन थैंक यू CIRC टीम, निर्भीक फॉर सर, द फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड it was really good to एंड have all the people here. once again thank you so much, and thank you all the dignitaries, Ankur sir, Nirbhik sir, Dhaval sir, and Shreya sir, and especially all the audience patientfully आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया। On behalf of the CIRC of ICI, thank you once again, and we look forward to your active participation in upcoming events and programs. Thank you so much. Thank you everyone. Should I close? Yes.